को ऑफ कर लेते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, बाद में ज्वाइन करने वाले जो लोग हैं वो बीच में इंटरप्ट ना करें हमें। ठीक है सर, हम वो कर देंगे। ओके ओके, अभी तो नहीं है मैं, कल परवश है। जी सर, मैं कल शाम में। आई गॉट यू, आई गॉट यू, आई थॉट अबीर इज देयर। अच्छा, यू सर आर ओनली। मैडम अभी भी हमारे साथ है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, दोनों में आप मैनेज कर रहे हैं। जी जी सर, हम दोनों। राइट राइट राइट, ठीक है, शुड आई स्टार्ट नाउ फिर? श्योर सर, ओवर टू यू। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दी एस्पिरेंट्स जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे जस्ट लेट मी नो माय वॉइस इज क्लियर, लाउड एंड क्लियर, कैन यू हियर मी? वालेकुम सलाम टू एवरीवन एंड फ्रॉम माय साइड ऑफ कोर्स अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी? यस, ओके ओके। अच्छा जी, बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू गिव यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ताकि आप जो पूरा लेक्चर है उसको यू कैन ग्रैस्प द आइडिया, कॉम्प्रीहेंड जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, पूरी बात को समझ सकें। What I would like is to be honest with me and make the session interactive as much as possible, particularly when I ask you the questions, because my lecture based on the answers, the response you give to me. तो मुझे आप response देंगे उसके ऊपर बेस करता है, right? Let me tell you, this first session is the most important session, and I call this session to be the paradigm shift. Paradigm shift, इसका मतलब ये है कि you have come with a mindset, a model in your mind, a perception about this subject, obviously about CSS, and in particular about this subject. That may not be true. That model needs to be changed, and changed immediately. If you remain in that model, अगर आप उसी मॉडल में रहते हैं, तो that is not going to bring any kind of success. You see that when 98% students fail, you see, and only 2% pass, this means there is something that we need to understand. We need to understand the whole game. So if you don't understand that, you will fall into the category of 98% who fail, who believe or who think that they work hard, they put all their efforts, but that never brings about their success. And all the time they remain confused because they keep listening to, different voices, different people, जो उनको बस फिर जो बताते हैं फिर उसी को सुनते रहते हैं। तो पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है कि पूरी वो जो मॉडल है आपके ज़हन में इस वक्त मॉडल है, पूरा चेंज हो जाएगा. It will be entirely changed. And at certain point of time, you would be shocked to hear the things that you've been hearing, you've been believing उन सारों को. So I never get into my subject unless I make the objective of the subject clear to the students, because unfortunately in our universities, schools, colleges, you've been trained like a person who blindly follows things, and this is not a blind game at all. Blind game nahi hai. It is, I call, an intentional game. It's not a blind game, it's an intentional game. Intentional means that every single act, every single question, every single answer, every single alphabet, every single punctuation mark has to be very carefully chosen, selected, and applied, rather than blindly reading a question और उसको आप करने बैठ जाएं, जैसे कि हमारे यहाँ क्रैमिंग का सिस्टम चल रहा है. So, I hope इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी कि what is this? This is going to be altogether different thing, right? So mentally you prepare for that, something surprising, something new. And what I can assure you here is that you would gain more confidence. I mean, at the moment, there are three categories of the students sitting in front of me. I know that because for the past 2 decades, we've been dealing, with the same, students, same types of students. आपके लिए हम नए हो सकते हैं,
हमारे लिए आप में से कोई भी नया नहीं है, भले हमने आपको देखा या नहीं देखा, बट हमारे लिए नहीं है, बिकॉज we're going to study the same mindset, graduating from universities, who has not been prepared for the success, despite the fact that they can succeed, but they have not been prepared for the success. तो हमें वो पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सवाल करेंगे ना, वो पहले से हमें पता है। जो भी आप सोच रहे होंगे वो ऑलरेडी पता है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी विटनेस एवरी सिंगल डे, इवन आफ्टर ट्रेनिंग माय स्टूडेंट्स, आई फाइंड द सेम प्रॉब्लम, सेम कंफ्यूजन स्टिल लर्किंग इन देयर माइंड, उनके दिमाग में चल रही होती है, क्योंकि जब वो शुरू के लेक्चर्स होते हैं तो वो बातों को नहीं सुन रहे होते हैं। 5वें 6ठे लेक्चर के बाद रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि नहीं, वी डोंट नीड टू बी ओवर स्मार्ट, वी डोंट नीड टू अंडर एस्टिमेट आवरसेल्फ आइदर, वी नीड टू बी बैलेंस्ड, हमें बैलेंस आना है। लेकिन ऑब्वियसली फिर इसमें काफ़ी चीज़ें उसमें मिस कर जाते हैं। तो एंग्जाइटी भी होगी आपको, इस्तराब भी होगा, डेस्परेट भी होंगे। आई वुड से बी काम, डोंट बी डेस्परेट, जस्ट बी काम एंड लिसन टू एवरी पॉइंट आई से। इफ यू फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी नोटेड डाउन, लेट इट बी ऑन टू द पेपर टू, पेपर पे भी नोट कर लें, ठीक है जी। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। सो आई गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस। नंबर 1, इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहले नोवा का या ख़ास तौर पर मेरा स्टूडेंट रहा हो, वो मुझे ज़रा बता दें। या नोवा को ओल्ड स्टूडेंट हो या मेरा ख़ास तौर पर स्टूडेंट हो। अगर मेरा तो मेरा नाम भी साथ लिख दें कि यस आई बीन योर स्टूडेंट। नो, सो ऑल आर न्यू। ओके, दैट्स फॉर श्योर। Nimra, you've been my student. Okay, I might have heard this name. I know this name actually. आयशा खान, आप कैंपस पे स्टूडेंट थी, मुझे बैच भी बताते जाएं तीनों लोग, और मुझे ये बताएं कि फर्स्ट सेशन आपने अटेंड किया हुआ कभी मेरा? C39 मेरे पास था। ओके, नंबर 304 में थी, आई डोंट रिमेंबर। अच्छा, जो मेरे साथ थे, मेरे साथ आप पंजाब थे, मेरे PMS पे थे, तंजीला। ओके ओके ओके, वजीहा का मेरे साथ फर्स्ट सेशन है, 931 डबल 20। ओके, किरण आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं? ओके, ओके। सो जो लोग अभी फर्स्ट ज्वाइन कर रहे हैं मुझे, दे बीन माई स्टूडेंट इन वन वे और द अदर, आई मीन दे माइट हैव जॉइंड इन द सेकंड सेशन और थर्ड सेशन और मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनी अदर बैच, तो उनको मेरी मेथोडोलॉजी भी पता है। तो उनको अगर ये पहला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आज उनको वो सब कुछ याद करवाएगा दैट आई यूज टू एम्फसाइज, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर देम। जब तक ये बात समझ नहीं आती, द रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स आर नॉट गोइंग टू वर्क, दे आर यूजलेस, right? You keep struggling with that. Okay, my second question is, मैं जल्दी से 2-3 क्वेश्चंस करने हैं बस, उसके बाद मेरी ये बात शुरू हो जाएगी। My second question is, आप में से कोई CSS में पहले अपीयर हुआ है तो मुझे उसका रिजल्ट बताए एसए और प्रेसी के अंदर। Anyone who ever appeared in the CSS, let me know the marks, both in precie and essay. Anyone who ever appeared, be honest. precie 23 और नाम मैं नहीं लूँगा, 7। ओके, ऐसे में 7 प्लस मिलिए, precie में 41 एक के हैं। ओके, 42 ऐसे में, precie में 35। ओके, बाकी लोग सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते जाएं। आई एम नॉट नेमिंग दो स्टूडेंट्स, बट आई एम प्रोनाउंसिंग द नंबर्स, सो कीप लिसनिंग। essay 29, precie 32। आई जस्ट वांट टू सी कि किसी के precie में ज़्यादा आए हों, फिर precie में कम हो गए हों, सेकेंड टाइम अपीयर हुए हैं। ओके, दीज आर द स्टूडेंट्स। नो वन एल्स। आई गॉट एक्चुअली 2, 3 and 4 स्टूडेंट्स। ओके, बहुत ज़्यादा अब आपको समझ आएगी मेरी बातें। जो अपीयर हुए थे, बट दे अनफॉर्चुनेटली फेस द प्रॉब्लम
they would pay attention. They must pay attention to me. Okay. Last question. How many of you hold, any degree, master, bachelor's in English literature, linguistics? इंग्लिश पढ़ते पढ़ाते हो, इंग्लिश के प्रोफेसर हो, इंग्लिश के टीचर हो, इंग्लिश में मास्टर्स वगैरह किया हो. साहिल आपने ही किया हुआ है. ओके. बट यू हैव रियलाइज साहिल व्हाट इज दिस इज क्वाइट डिफरेंट थिंग. जी मैं वही कह रहा हूँ ना बेटे, अब आपको महसूस हो गया होगा इट्स क्वाइट डिफरेंट थिंग. जो डिग्री कुछ नहीं करने वाली. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली. आई जस्ट वांट यू गिव एन आंसर सो दैट आई लेट द पीपल नो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. If they believe that it's going to work. Okay. अच्छा जी. Okay. डरने की ज़रूरत नहीं है जी. मैं आपका नाम नहीं ले रहा, बट देयर इज़ नो नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ. काम करने से होते हैं और कोशिश करने से होते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में कोशिश करनी होती है. डायरेक्शन में कोशिश नहीं है, इसलिए डिग्री लेने वाले भी रह जाते हैं. डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू बीन माइट बी टीचिंग. आई हैव हैड मैनी स्टूडेंट्स हु बीन कॉलेज लेक्चरर्स, प्राइवेट कॉलेज में या स्कूल्स में पढ़ा रहे होते थे, इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते थे, बट दे ऑल्सो फेल्ड unfortunately, but they did not realize what the fact is. Most of the students realize very late. जी ओके नो प्रॉब्लम. ठीक है. अच्छा जी. ओके थैंक यू. आई गॉट द आंसर्स. आई गॉट द आंसर्स एंड लेट मी टेल यू, बिकॉज सारों ने एक दूसरे के जवाब नहीं सुने होंगे. ओके जी. उसके बाद देख लें. यस निशान यू आर राइट. 80% आपने कहा जी थ्रू आउट माई एजुकेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन प्रेसी में 40 रहे और एसए में 30 रहे. यस, बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज टुडे. If you follow them, if you understand them, and if you open up your mind and do not close your mind, do not listen to what people say, and make a strategy of your own, then there are chances that you would get through. But if you just, now the time is short obviously, and this is the matter of urgency. You have to compose yourself, organize yourself in such a way कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें. टारगेटेड अप्रोच चाहिए जी. ठीक है जी. ओके जी. सुनिए जी. अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ एंड प्लीज नाउ लिसन वेरी केयरफुली. जी मुझे पता जी. थैंक यू फतीजा फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ. आई रियली वेलकम एंड अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्पीकिंग टू मी नथिंग बट ट्रूथ. I really appreciate that. I really respect those students who are speaking truth, nothing else. You know, you are right कि हमने भी बहुत से लोग पढ़ाए हैं जो कंटेंट राइटर भी हैं, अखबार में भी लिखते हैं, लेकिन एसए में प्रेसी में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अगेन वही बात मैं कहूँगा, they have a paradigm, that needs to be changed. That's it, nothing else. Okay, now I want you to please stop now. I've given you the instruction. I don't want any kind of interruption. I want out and out attention. 100% focus. You can have the pen and paper with you and just listen to me, because the points that I'm going to disclose, they are going to shift your paradigm, would bring about clarity, right? And may give you an idea about this strategy that you can make of your own, not suggested by anyone else. Neither I nor anyone else. You must have to make your own strategy. So just give me a short answer. Are you ready to listen to? Now just let me know. Are you ready to listen to and pay attention? Don't disturb me. Okay. Thank you very much. बल्कि मैं डिस्कशन को भी ऑफ करवाऊंगा और आप लोग खुद नोट करते, बल्कि मैं वेलकम करूंगा कि अगर आप मुझे कोई मैसेज ना करें. ठीक है जी. राइट. आप मुझे मैसेज ना करें. ज़्यादा सुनेंगे तो मुझे खुशी होगी कि बगैर मुझे इसको ब्लॉक किए, चैट को, बॉक्स को, आप मुझे सुन रहे हैं, गौर से समझने चाह रहे हैं. ठीक है जी. आई बिलीव दैट यू वुड अंडरस्टैंड. ओके जी. जी प्लीज़ आप मैसेज ना कीजिएगा. ये जो सवाल है ना, डॉन हेल्पफुल है या नहीं है, प्लीज़ मैं नाम नहीं आपका ले रहा.
ये बहुत प्रीमेच्योर, यही ये क्वेश्चन हैं जो फेल कर देते हैं. आप प्लीज स्टॉप कर दो और लिसन टू मी नाउ. ओके, आई रिक्वेस्टेड यू ऑल, लिसन टू मी. अगर आप करेंगे दोबारा तो फिर मुझे चैट को ऑफ करना पड़ेगा. ये हैं वो चीज़ें जो एंग्जाइटी डिप्रेशन शो करती हैं और बंदा आगे नहीं बढ़ सकता. सुने, ये बहुत प्रीमेच्योर सवाल है. थैंक यू. अच्छा जी, सबसे पहले देखो बेटे, पैराडाइम शिफ्ट, यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर. ठीक है जी, कॉल्ड प्रेसी एंड कंपोजिशन. ठीक है, इसको समझना पड़ेगा. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेसी एंड कंपोजिशन, you cannot pass that. The approach that you come up with is कि एक पेपर है और there is a question of precie and which is very important. Everybody talks about this being very important. Even teachers talk about this, and you start calling this paper to be the precie paper, ignoring another component called composition. अभी हमारे चल रही हैं टेस्ट सीरीज चल रही हैं और टेस्ट सीरीज का आज तीसरा टेस्ट चेक कर रहा था मैं, दोबारा दूसरा टेस्ट सॉरी चेक कर रहा था. और ये छोटी छोटी चीज़ें, प्रपोजिशंस हैं, इडियम्स हैं, क्या कहते हैं, सेंटेंस करेक्शन है, बिल्कुल गलत, 0 मार्क्स. क्योंकि वो चीज़ों को समझते नहीं है. पूरे पाकिस्तान से लोग टेस्ट देने आते हैं, किताबों से पढ़ के आते हैं, तो समझते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे द पेपर दैट दे हैव टेकन एंड एट इंटरमीडिएट लेवल और एट ग्रेजुएट लेवल, एंड दे इग्नोर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और उनको पता ही नहीं होता. So unless you understand why FPSC has designed this paper of pressing and composition, what is the objective, what they want to see actually, you won't be able to deal with the subject, right? This is the only paper among your compulsory subject which is of the language. Mark my word. This is the only paper which is of the language, nothing else, right? Or definitely there is an objective behind splitting this paper of the language. You see that 2% fail, 2% pass, 98% fail, and nobody tries to investigate into this कि 2% लोग कैसे pass हो जाते हैं. Everybody concludes quickly that CSS is difficult, number one. Number two, English is very difficult. Something like, like scholastic English should be there. ये conclude करते हैं. And if they don't even for example they try to figure out कि क्या reason है उसकी, और अगर उनको वो reason नहीं पता चलती तो finally they conclude it's the matter of luck. Now without probing into this what the reality is, आप assume कर लेते हैं और आप ये नहीं सोचते कि if the 2% have passed, why they have passed, why they have passed. Nobody thinks about this. And you also assume about these 2% that they're probably very talented, very unique. They've got a brilliance and the different type of talent. But the reality is quite opposite to that. बिल्कुल opposite है जो आप देखते हैं. Let me give you an analogy. एक analogy देता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी. Just imagine that right in front of you is a glass door. Glass door है आपके सामने. और ग्लास डोर में से देयर इज अ रूम, देयर इज अ फ्लाई, मक्खी है, वो उस कमरे से भम रहा है, मक्खी है, कुछ भी कह लें, कमरे से बाहर जाने की कोशिश करिए. इट हिट्स द ग्लास, इट फॉल्स डाउन, इट हिट्स द ग्लास अगेन, फॉल्स डाउन अगेन. इट कैन सी थ्रू द ग्लास, इसको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है ग्लास के बाहर. एंड इट डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द रूम एंड व्हाट इज आउटसाइड ऑफ द रूम. फॉर द फ्लाई वो सारी चीज एक ही है. Or it hits again and again, falls down and gets exhausted. You see, it gets exhausted because it does not have that sense of sensing कि क्या चीज उसको रोक रही है. वो हार्ड चीज उसके रास्ते में आ रही है. वो ट्रांसपेरेंसी तो ठीक है, लेकिन हार्ड चीज उसके रास्ते में क्या आ रही है. It is the part of that transparent glass. The hardness is the part of that transparent glass, but it's not being sensed by the fly. The same is the case with the students. They see that it is easy, but they cannot see the obstacles, the problems that are within the process.
that are within the process, उसको वो सेंस नहीं कर पा रहे होते और वो डिफरेंट तरीकों से कोशिश तो करते रहते हैं. बाय द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि हमने कोशिश तो बड़ी की थी, फेल हो गए. They failed to realize what was obstructing them, what was hindering them. Within the process क्या चीज थी, within the process में नाम ले रहा हूँ, within the process क्या चीज थी, और they then conclude कि ये ऐसे हो जाता है. अभी आपने देखा कि मैंने पूछा था जी कि कोई इंग्लिश 2 सवाल मैंने पूछे थे कि किसी ने CSS को किया प्रेसी और ऐसे में, तो आपने देखा कुछ के एसए में अच्छे मार्क्स हैं, प्रेसी में फेल हैं, कुछ दोनों में फेल हैं, कुछ प्रेसी में पास हैं, एसए में फेल हैं, कुछ ने प्रेसी और एसए पास किया बट दोबारा दिया, बट दे फेल्ड इन बोथ, सम फेल्ड इन वन. द क्वेश्चन इज दैट यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन कि कुछ तो गलत है, कुछ तो प्रॉब्लम है. अगर आप इसको रिफ्लेक्ट नहीं करोगे और अपने तमाम एरियाज जो द वीकनेसेस हैं उनको देखोगे, नहीं समझोगे खुद से, रादर यू वुड अज्यूम कि ये मेरी फेलियर की रीज़न है, ये फेलियर की रीज़न है. दिस इज व्हाट आई फाउंड मोस्ट ऑफ द टाइम कि स्टूडेंट खुद से सेल्फ कंकॉक्टेड किस्म की, सेल्फ क्रिएटेड किस्म की अजम्पशंस बना लेते हैं और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं चलते, आइडियलिस्टिक अप्रोच से चलते हैं. दैट्स व्हाई दे फेल. उसको समझने की कोशिश नहीं करते. So that realistic approach I'm going to present before you today, you must understand. What I'm going to do is, if you could please see this slide, ये पूरी चीज चलेगी, पूरा कॉम्पोजिशन का पेपर आपको समझ आएगा. एग्जामिनर के रिमार्क्स को मैं लेके चलूंगा, एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर असल में क्या चाह रहा है, not anything but being suggested by a teacher or by any so-called scholar around you. You must listen to what PSC demands, what examiner demands, what the question paper demands. जब तक आप उसको ही नहीं समझोगे, आपकी सारी एफर्ट्स जो हैं वो दे रिमेन यूजलेस, दे फुटाइल, उसका कोई फायदा नहीं होगा. जैसे कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि प्रेसी का पेपर, प्रेसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, किसी का एक ख्याल है वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. ऑल आर इल्यूजन्स, होप्स, दे हैव नथिंग टू डू विद द रियलिटी. उसको समझना. तो अब एक चीज़ होगी, इसी तरह से देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव, मैंने पूछा कि किसी के पास मास्टर बैचलर डिग्री इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स की है, दैट इज फॉर अ रीजन, दैट फॉर अ रीजन, बिकॉज यू माइट हैव हर्ड कि बहुत से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री अभी आप में से बहुत से लोगों ने जवाब दे भी दिया जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री है, कुछ पढ़ाते भी रहे हैं, कि यस दे आल्सो फेल्ड. तो कुछ तो डिफरेंट है ना भाई. इफ इट इज कि जी डिग्री होगी तो मैं पास कर लूंगा, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी तो मैं पास कर लूंगा, अगर मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ इन अ न्यूज़पेपर और अ कंटेंट राइटर आई वुड बी एबल टू पास दैट एग्जाम्स. दैट्स नॉट द गेम माय डियर, दैट्स नॉट द गेम. द गेम इज डिफरेंट. दैट माइट नॉट बी एज डिफिकल्ट एज यू थिंक एंड दैट माइट नॉट बी एज इजी एज यू बिलीव. इट कुड बी इन बिटवीन दीज टू थिंग्स. इट मे बी समथिंग एल्स जिसको हमने अभी समझाना है आपको. यू सी दैट, देखो, to play and win any game, you must know the rules of the game. That's for sure. मेरी स्लाइड नजर आ रही है, मुझे जवाब दीजिएगा. और मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? I got a doubt. प्लीज एक दफा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा. Okay, thank you very much. I appreciate it. You know, you need to play and win any game. You must know the rules of the game. बच्चे, ये CSS और CSS का जो ये सब्जेक्ट है, ये डिफरेंट गेम है. Do not treat it as that academic subject or that academic paper that you've been trained for. वैसा नहीं है. It is academic but not in the way as it was. You must know the rules of the game. और इसके रूल्स आपको समझने पड़ेंगे. डिफरेंट गेम है. सबसे बड़ी जो रूल है इसका, वो जो अपने ज़हन में बैठाना है, जो मैं पिछले 20 साल से एक ही बात सुन रहा हूँ, और ये पिछले 8-10 साल से तो बहुत ज़्यादा सुनता हूँ. Everybody tries to impress upon the examiner, and for that matter they believe कि हमें कोई अंग्रेजी की ना बड़ी ज़्यादा वोकैबुलरी याद कर लेंगे ना, तो वोकैबुलरी से हमारा काम हो जाएगा. This is such an illusionary and pathetic approach that never lets you succeed. You don't have an idea about the role of words, the role of vocabulary. Students vocabulary पूछते हैं और simple words उनको नहीं आते हैं, because they think कि हम जब मुश्किल vocabulary लिखेंगे examiner would be impressed. Examiner is there to assess. वो impress होने के लिए नहीं आया.
is there to assess. क्या करना है assess उसने? Assess according to the very objective of this paper, that for the objective this paper has been designed. ये पेपर किसी ऑब्जेक्टिव के लिए डिजाइन किया गया है और उस ऑब्जेक्टिव को क्या आप डू यू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, उसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया हैज बीन सेट। क्या आप उस क्राइटेरिया के मुताबिक, क्या मैं कह रहा हूं, उस क्राइटेरिया के मुताबिक क्या आप ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो? दिस इज व्हाट दे नीड टू सी। इफ anyone who does so succeeds, anyone who does not never succeeds। हमने बाहर की पढ़े लिखे लोगों, यूनिवर्सिटियों के लोगों को देखा है, right? We have seen people from very good universities in Pakistan and got degrees, but they won't be able, they have never been able to make up. They've never been. And we have seen very ordinary students coming from very humble background, academic background, they passed with flying colors. That is very important to understand. एक बच्चे को लगा कि मैं लम से पढ़ूं, मैं यहाँ से पढ़ूं, मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं तो 2 मिनट का काम है, CSS तो मसले कोई नहीं, ऐसे हो रही है तो मैं 2 मिनट में कर लूंगा। They failed. And then what happens कि egoistic हो गए, फिर ये really dig नहीं किया कि रीजन क्या हो रही है, and never take the responsibility. An event that tells you कि क्या गलत हुआ, उसको समझो, that's it. It does not decide your permanent future. इसी तरह फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपने कह दिया कि नहीं मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मैंने इसको भी एक्सेप्ट नहीं करना। That is dangerous. स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं? स्टूडेंट्स डू नॉट फेल बिकॉज दे हैव एनी लैक ऑफ एबिलिटी। आप लोग डिग्रियां लेकर आए, डॉक्टर्स बन गए, लॉयर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, कुछ भी बन गए, यू हैव गॉट द डिग्रीज, यू हैव गॉट द एबिलिटीज, यूनिवर्सिटी ने आपको पास कर दिया, ठीक है। इस चीज़ को वो चेक नहीं करने जा रही है FPSC वाले। FPSC वाले कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक एस्पिरेंट से उनको रिक्वायरमेंट है क्योंकि उन्होंने पास करना है तभी वो ऑफिसर बनेगा, और एक ऑफिसर की प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में कुछ चीज़ें शामिल हैं, उसके मुताबिक उन्होंने हर सब्जेक्ट में आपका नॉलेज, आपका एक्सपोजर, आपकी एक्सपर्टीज को देखना है। So students do not fail because they lack any ability. Students fail because their inability to know the demand of the examiner. वो कोई एग्जामिनर को नहीं समझ रहे, अपनी मर्जी करें। 2016 में जो प्रेसी का क्वेश्चन था वो फ्लंक किया लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, इसलिए कि प्रेसी के क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको उन्होंने नहीं देखा। They blindly started writing precie without reading the instructions. इतने आदी हो चुके हैं ट्रेनिंग सिस्टम के that they did not bother to think about it. They did not bother to reflect on the question. Blindly they did, and even today, the students do this. I have seen that. I've many times apprised my student कि भाई ये देखो अब कर क्या रहे हो, अब सवाल तो समझ लो, सवाल तो कुछ और पूछ रहा है। Because they take it superficially, they don't go into the depth. तो वो एग्जामिनर की डिमांड तो जब नहीं समझते, दिस इज द ओनली इनएबिलिटी। अंग्रेजी ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, अगर वो पहले पूरे ऑब्जेक्टिव को समझ के और क्वेश्चन की डिमांड इन सबको अलाइन कर सकें, एंड देन दे डिजाइन देयर ओन स्ट्रेटजी जिससे वो आगे चल सकें, राइट। स्टूडेंट से मैंने पूछा था कि अपना बताएं कि कौन से लोग मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में हैं। क्यों पूछा था? बिकॉज दे आर द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, दे कंसिडर देमसेल्फ टू बी द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की इनएबिलिटी ये है कि वो ये कहता है मुझे सब पता है। His mind is closed. He doesn't like to ask questions. He doesn't like to be challenged. He doesn't like to be corrected. He doesn't like to be wronged. He simply wants himself or herself to be accepted as a perfect entity. That's the problem. They do not listen to what they don't know. They do not listen to what they don't know. They know that they believe that they know, and they wrongly believe that they know, and they know perfectly. Nobody else knows. Subject specialist का mind बंद हो जाता है।
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का माइंड बन जाता है। मिसाल के तौर पर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को तो छोड़ दें, इस वक्त आई कैन सी 200 स्टूडेंट्स और मोर देन 200 स्टूडेंट्स sitting right in front of me. Some are very well qualified from different universities in Pakistan, maybe well educated, graduated from foreign universities. ठीक है जी, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। मैं अगर सिर्फ इतना कह दूं ना, आज मैं पहला लेक्चर और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेंसेस में आपकी क्या गलती होती है, आप टेंसेस नहीं सीखते हैं, आपको टेंसेस नहीं आते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड क्विट। यू वुड से कि नहीं यार ये तो मैं कर लूंगा, मुझे तो पता है। अभी मैं दिखाऊंगा एग्जामिनर क्या कहता है, नहीं पता, सारी जिंदगी टेंसेस सीखे, नहीं पता। सो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो है ना चीजें यही होती हैं कि वो कहते हैं कि थैंक यू हैदर, प्लीज वेट कीजिएगा प्लीज, thank you very much for this, but listen to this, I've seen your message, please listen, pay attention to this is very important today, nothing else, only this lecture is important today. So subject specialists believe that they know, so they don't, the mind closes and they don't pay attention to what they need to listen to. और जो subject specialist नहीं होता, वो बेचारे का प्रॉब्लम ये कि he gets into the dilemma of not knowing anything at all, so he tries to accumulate, बहुत ज्यादा नॉलेज एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है। वो बेचारा हर कुछ जानने की कोशिश करता है जो नहीं भी जानना चाहिए। We have to create the balance. You have to understand where exactly you are at the moment and what should be the right first step and what should be the series of steps that lead you towards your success. That is very important. Your only ability is to know well and meet the demand of the examiner. और अगर आप डिमांड ऑफ द एग्जामिनर को नहीं मीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं। अब हम जरा देखते हैं कि एग्जामिनर क्या कह रहा है। मैं एग्जामिनर की रिपोर्ट सामने रखूंगा और उससे आपको सारी चीजें बताऊंगा। दिस इज द एग्जामिनर रिपोर्ट, कैन यू सी दिस रिपोर्ट? प्लीज एक दफा फिर मुझे बताएं, कैन यू सी दिस रिपोर्ट? 2016 की रिपोर्ट है और ये यूनिवर्सल रिपोर्ट है, मैं इसकी इसको सामने रखता हूँ। कैन यू सी दिस रिपोर्ट? आई कॉल दिस रिपोर्ट टू बी यूनिवर्सल. I call this report to be universal. Why? Because क्या कहें, for the past obviously 2 decades we experienced the same thing. We have witnessed the same thing. We have experienced the same thing. ये हर एक पे अप्लाई होती है। आज भी मैं टेस्ट सीरीज देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यही चीज अप्लाई होती है। It's something like a common phenomenon. तो जरा देखते हैं कि एग्जामिनर क्या कहता है। एक चीज है जो आपने सुनी है सीएसएस के बारे में, आपने नोट करना है द डिफरेंस। आपने नोट करना है डिफरेंस जो आपने सुना है सीएसएस के बारे में, इंग्लिश के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, ऐसे के बारे में, और आज आपको एग्जामिनर डिफरेंस दिखाने जा रहा है। एंड आई एम गोइंग टू अनफोल्ड समथिंग दैट यू हैव नेवर हर्ड बिफोर. एग्जामिनर सेज द जनरल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट वाज सबस्टैंडर्ड. 2016 की रिपोर्ट में उसने कहा कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस सबस्टैंडर्ड थी. एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय सबस्टैंडर्ड. ये नहीं थे कि वो लाइक थे, सब स्टैंडर्ड थी. क्यों सब स्टैंडर्ड थी अभी पता चल जाएगा. लैकिंग ओरिजिनलिटी, रेलेवेंस, और सबसे बड़े बोल्ड करके लिखा है प्रेजेंस ऑफ माइंड. यस, दिस इज द की टू फेलियर, दैट दे वर एब्सेंट. प्रेजेंस ऑफ माइंड का मसला था, एब्सेंस ऑफ माइंड थी. ठीक है, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चन को नहीं समझ सकते थे. That is the only key to failure, that they were mentally absent. They do not understand the question. 16 में बताया ना कि इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ा, देखा ही नहीं कि प्रेसी क्या चीज है. और उसने नेक्स्ट आर्गुमेंट में अपने पॉइंट में कहा, इट सीम्स दैट दे वर इग्नोरेंट अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, यूजेज ऑफ वर्ब्स, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स. उसने लफ्ज यूज किया इग्नोरेंट का. उसने ये नहीं कहा दे डिड नॉट नो दिस प्रॉब्लम. आप देखें कितनी, अभी मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, आई एम डैम कॉन्फिडेंट आउट ऑफ 209 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट except one or two, everybody would tell me the detailed definition of noun and verb, but the examiner says they did not know about the difference between nouns and verbs. So let's, before we proceed for the rest of the comments of the examiner, let's analyze the fact and analyze or assess whether this is a fact or not.
मैं कुछ सवाल पूछूंगा. ओके, वेरी सिंपल, टू दी पॉइंट. मुझे आपके जवाब देना है. उसे कहते हैं ना, रेलिवेंस होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए. To the point answer I need. A very simple question. Throughout your academic career, you've been learning about tenses, right? You've been learning about active voice, passive voice. Quickly जवाब देना yes or no में अगर आपको आता है तो. Throughout your academic lecture, you've been learning tenses, active voice and passive voice. You see, you've been learning about all these things. And I'm writing a sentence here, and I am damn sure, I'm confident that you can make of this. I don't drink milk. अगर मैं ये कहूं कि पैसिव वॉइस इसका बनाए तो मुझे यकीन है कि आप सब बना सकते हैं. आई एम 100% कॉन्फिडेंस, except few, everybody can make the passive voice of this. So please quickly write the passive voice of this. Quickly chat box में लिखें passive voice of this. Quickly, सब लोग. This is very important. Yes. Thank you very much. हर एक ने बिल्कुल ठीक लिखा. Milk is not drunk by me. But my question to you is, आप लोगों ने बनाया ना, मैंने तो नहीं बनाया. Okay, hold on. Hold on. आप लोगों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया. But when I'm going to ask you a question, what is voice? क्या है? Voice क्या चीज़ है? I'm not asking about passive voice. I'm asking about voice क्या है? What is voice? What is a voice? Just simply tell me what is voice. Yes or no? नहीं पता फौरन लिख दो. Thank you very much for. Thank you. Okay, thank you. Okay. अभी मैं इसका मीनिंग नहीं बताऊंगा. Few of the students have written. There were 2-3 students, they were correct. But I'm not going to tell you unless I get something. Listen. No, stop. Listen. 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 Please stop. Okay. पहला सवाल मैंने पूछा था. Now, my second question to you is, जिन लोगों ने बताया है मुझे इसका मैं बता दूंगा. Listen. How many of you remain always confused? सुनना गौर से सवाल. How many of you remain always confused about practicality of the active voice and passive voice? कि ये यूज कहाँ होते हैं? इतने दिमाग में ये कंफ्यूजन आती रहती है. बस मुझे बताते जाए. Yes. बहुत से लोगों के साथ. Yes. Yes, you're right. Every time. You see, I got 2 questions. अब ये छोटी सी चीज मैंने आपसे पूछी एवरी टाइम. जिन लोगों ने ठीक बताया था उनको भी कंफ्यूजन है. देखा, ये है वो एग्जामिनर जो बात कर रहा था. मैं अभी आगे बात शुरू करें. आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ. बट लिसन, दिस इज व्हाट एग्जामिनर वाज सेइंग. Ignorant about basic rules of English grammar, sentence structure, use of verbs, noun and adjective. Despite the fact you all made it, I did not make it, you made it. सबने ही पैसिव वॉइस बनाई और ऑलमोस्ट 99.9% लोगों ने ठीक पैसिव वॉइस बनाया, मगर 98% लोग नहीं जानते वॉइस है क्या एंड व्हाई दिस वॉइस इज प्रैक्टिकली यूज्ड. 98%. Ladies and gentlemen, my question to you is, listen to my question very carefully. Listen to my question carefully. What if, जिस प्रेसी के क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं, I'm not saying it's not important, but I'm saying is the way you consider this to be very important. Let's suppose 30% or 20% even, the most important content in that content, 20% of the content जो है वो passive voice पे है. 20% the core content is in passive voice. Would you be able to sense that?
would you be able to sense or reproduce that? Despite the fact कि आपको पैसिव वॉइस का फॉर्मूला आता है, आप पैसिव वॉइस को बना रहे हो जुमले को, लेकिन जस्ट बिकॉज, जी मैंने आपको पूछा, सब लोग मुझे जवाब दें. If the 20% is, Heather, please stop. That message is disturbing me, please. If, for example, 20% of the content in the question of precie that you believe it is very important, अगर वो 20% का जो content है वो passive पे लिखा है और वो बहुत important portion है content का, my question to you is, अगर आपको ये पता नहीं है voice है क्या चीज और क्यों use होती है, would you be able to sense that? This is my question. Quickly answer करें. Yes, not at all. मुझे बताएं कि क्या फायदा आपका, अगर आप सेंटेंस तो बना रहे हो, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो, बट यू आर अनएबल टू सेंस दैट बिकॉज यू डोंट नो. व्हाई? बिकॉज technically you've been trained. For example, I don't drink milk, जिसमें आपको सिखाया गया कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, राइट? ये आपको सिखाया गया. और मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय मी, सिखाया गया कि जी ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ, ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब वहीं पर रहेगा, वर्ब को उधर ले आओ, थर्ड फॉर्म में ले आओ, और उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट लगा दो. दिस इज टेक्निकल जगलिंग, आई कॉल इट. दिस टेक्निकल जगलिंग, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस. Everybody knows about this, and you made it, but you did not know that. Why? The reason. सुने जी अब reason क्या है. Let me tell you, ladies and gentlemen, grammar for the sake of grammar and grammar for the sake of communication is different. Grammar for the sake of grammar and grammar for the sake of communication are two different things. पहली बात, you've been taught grammar for the sake of grammar. You have never been taught grammar for the sake of communication. What is the practical usage of this? Why do you use this? That's why you don't know. I would make it clear within less than a second. Less than a second or within a second. आप कहेंगे हैं इतनी आसान चीज है तो क्यों नहीं थी पता, क्यों नहीं हमने खुद से गौर किया, टीचर ने नहीं बताया तो हमने क्यों नहीं गौर किया. लेकिन देख लें, छोटी सी चीज सदियों भी ना पता हो तो फायदा कोई नहीं है. जैसे उस मक्खी को अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो हार्ड चीज है, उसको सेंस नहीं कर पा रही थी, तो मामूली सी चीज जिसका सेंस नहीं होगा, अब ये गलती करेंगे. You see, that has not been told. Number 2, remember that writing and reading as skills have never been taught. आपको writing और reading नहीं सिखाएगी. You do know that what is writing. You do write. You do cram the formulas of essay. You do know how to read because you've been reading. But in a particular setting of exam, in a particular situation when you have not crammed anything, where cramming does not work at all, वहाँ पर reading और writing को किस time management के साथ करना है, वो स्टेमिना कैसे बिल्डअप करना है, वो क्या टेक्निक्स हैं, that have never been taught. किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता. ठीक है जी. जी मैंने हैदर आपके मैसेज देख लिया, आप प्लीज़ वेट करेंगे. मैंने आपसे कहा है कि मुझे पता है मैंने कौन सी चीज़ करानी है, आप मुझे तो नहीं डिक्टेट करें ना, वेट करें, सब चीज़ें आएंगी, पहले आप समझते जाएं. आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई लेक्चर येट. प्लीज़ पे अटेंशन, डोंट बी एंक्शियस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड. आई नो किस स्टेज पे मैंने कौन सी चीज़ बोलनी है. आई बीन टीचिंग फॉर अबाउट 2 decades more, and I know how to pace the class, how to lead the class. Please cooperate. Thank you very much. Writing and reading are skills they have never been taught. Right? Number 3, English as a language has never been taught. Though as a subject
it has been. You see, English as a language has never been taught, though as a subject it has been. So having literature degree or linguistics degree is a subject. It's not something with the language. You assume that you've improved language. You definitely improve your language, but you have never been tested in the language at what level you are at the moment. You don't know about this. And the objective of this paper is language proficiency in written communication. This is the only subject among compulsory subject which is of the language जिसमें written communication के अंदर ये सारी चीजें देखी जाएंगी. What I'm saying is written communication. This has not been taught. This has not been taught. This has not been taught. So you are not prepared for the communication, ladies and gentlemen. You might be prepared for the subject, but not for the sake of communication. और communication क्या चीज है? Listen. I'm going to delete it, and now listen. Keep listening to me. Keep listening to me. Pay attention to this. When we talk about communication, there is an oral communication and there is a written communication. Right? In oral communication, you speak words. You use human voice. I'm talking about human voice. वो वाली voice थी जो मैंने पहले लिखा था. Human voice and use body language. बेटा यही तो आप लोगों को पता है. मैं आपका नाम नहीं ले रहा बेटे. ये जो आप लिख रहे हो exchange of ideas and share of ideas, बेटा यही तो चीज़ें आप लोगों का unfortunate मसला है हमारा कि हमें ये technical definitions तो jargons तो आते हैं, practical understanding नहीं है. इसलिए आज आप जब बोलोगे आप वो बोलोगे जो आप जानते हो, लेकिन जो मैं बोलूँगा आप वो होश करना जानते हो. Be curious to learn, not be egoistic to tell. No, there is no need to, sorry, just to understand. मेरे लफ्ज़ों को याद रखना. हर 4 लेक्चर के बाद यही बातें याद करते हैं स्टूडेंट्स. मैं पहले बता रहा हूँ 4-5 लेक्चर्स के बाद. Be curious to learn, not egoistic to tell. Because when you listen, you know that you did not know. But when you speak, you only speak what you know. This is what Mark Twain said also. So oral communication के अंदर वर्ड्स होते हैं. रिसर्च कहती है कि जो आपकी स्पीच है वर्ड्स जिसको हम बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं उसकी रेशियो 7%. हमारे वर्ड्स को जो मायने देती है चीज वो है ह्यूमन वॉइस, दैट इज 38%. जस्ट इमेजिन. You see that I'm controlling you through my voice. The moment I raise my voice, I slow down my voice, I keep my pace slow sometimes, I stress upon the words, my voice is controlling you. My voice, you cannot see me, I can't see you too, but my voice is controlling you. My voice is telling you which word is important, which is not, which is to be noted down and you take notes of. This is my voice. Just imagine. इंडियन फिल्म पीके में भी बताया था अच्छा करके उसने समझाया था कि कैसे वर्ड्स को मीनिंग देता है. वर्ड्स हैव नो मीनिंग, द वॉइस गिव्स मीनिंग. ह्यूमन वॉइस. द बॉडी लैंग्वेज इज 55%. अगर ये 38% और 55% को जमा करें तो 93% जो है, ठीक है, इज नॉन वर्बल, जो कि आपका एक्सप्रेशन बनाता है. Ladies and gentlemen, what about written communication? There is no human voice. There is no body language. They are just words. वो expression कहाँ से आएगा कि जिससे पता चले कि आप अपनी बात क्या कहना चाह रहे हो? What message you want to convey? What is your intended meaning? What is your implied meaning? What do you want to refer to and all these things? इसको समझने के लिए आपको समझना है कि ग्रामर फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है. उसको समझ होना चाहिए, उसकी क्लियर होना चाहिए. और क्या है? फॉर एग्जांपल, दिस वॉइस जो मैंने पूछा था इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये जो मैंने पूछा था, इसमें वॉइस मीन्स स्टाइल.
How do you say something? How you convey a message? How you convey message? There is a message. Let me give you an example because some students ने ठीक लिखा था लेकिन उनके जवाब से मुझे पता चल गया उनको मैसेज फिर भी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए और से सुने. How? मुझे एक मैसेज देना है, मुझे एक मैसेज देना है आप लोगों को. लेट्स सपोज मुझे आपको एक मैसेज देना है, आप में से किसी एक शख्स को. ठीक है, सपोज मेरे नाम सामने नाम आ रहा है शोएब मलिक. तो शोएब का मैं नाम ले रहा हूँ. शोएब को एक मैसेज देना है और मैसेज ये है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं शोएब को रोकना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों का ना दे. एक इन्फॉर्मेशन है मैं शोएब को रोकना चाहता हूँ कि वो अपने दोस्तों को ना दे. ठीक है जी, लेकिन मैं शोएब को बता नहीं सकता कि वो इन्फॉर्मेशन जो है मैं क्यों उसको मना कर रहा हूँ. राइट. So there is one style of गुफ्तगू, एक्टिव अंदाज़े गुफ्तगू, एक्टिव स्टाइल ऑफ गुफ्तगू एंड पैसिव स्टाइल ऑफ गुफ्तगू. एक्टिव स्टाइल ऑफ गुफ्तगू का मतलब कि जिसमें आप बताते हो कौन एक्ट कर रहा है. पैसिव स्टाइल जिसमें आप छुपा लेते हो डूअर ऑफ एक्शन को. पैसिव मीन जिसमें डूअर छुपा हुआ है, सामने नहीं है, कम अज कम फ्रंट पे नहीं है, नजर नहीं आ रहा. अब क्यों छुपाते हो? देयर इज अ रीजन. मिसाल के तौर पर मैं शोएब से कहता हूं उन्हें मत बताना, उन्हें पता चल गया है, उन्हें पता चल गया है. राइट. ठीक है जी, उन्हें पता चल गया है. गौर से सुने, उन्हें पता चल गया है. आई मीन कैसे पता चल गया? किसी ने बताया होगा ना. लेकिन मैंने इस जुमले में मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ कहा उन्हें पता चल गया है. दिस इज कॉल्ड पैसिव स्टाइल. लेट्स सपोज शोएब मुझसे पूछता है कैसे पता चल गया. मैं कहता हूं मुझे नहीं पता भाई. पहली रीजन क्या? मुझे नहीं पता, बस तुम ना बताना. पहली रीजन क्या है? मुझे नहीं पता, बस तुम ना बताना. ठीक है. फर्ज करें मुझे पता है लेकिन मैं कहता हूं कि मत बताना, उन्हें पता चल गया. वो कहता है क्यों नहीं बताना? मैं कहता हूं गौर से देखें, छोड़ो इस बात को, बस तुम ना बताना. वॉन्ट टू हाइड द डूअर. पहले में पता ही नहीं है डूअर का, दूसरे में डूअर को छुपाना चाहता हूं. वॉन्ट टू हाइड फॉर सर्टेन रीजन. या तो डूअर का मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने ये अंदाज़े गुफ्तगू अडॉप्ट किया, या मैं डूअर को छुपाना चाहता हूं इसलिए मैंने ये अडॉप्ट किया. द थर्ड रीजन what is that? I want to avoid responsibility. मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता पूरी बात किसी में कहता हूं बस आपने नहीं बताया. The city has been bombed and many children have been killed. Your job has been terminated. ये क्यों यूज कर रहे हैं? The job has been terminated. Why your job has been terminated? Right? Who terminated your job? I'm not going to make it clear. That's why I just say your job has been terminated. तीसरी रीजन. बेटे अभी जनरली सुनते जाएं, सिर्फ आपको आइडिया हो जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, एग्जामिनर क्या कह रहा है. बस अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी समझा रहा हूं चीजें, ग्राउंड तैयार कर रहा हूं. द फोर्थ इज, जैसे कि आप चौथी रीजन क्या होगी इसको यूज करने की. आप लोग CSS के लिए आए हैं, यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द CSS. आई कम टू यू एंड अनाउंस रिजल्ट आ गया. आई कम टू यू एंड अनाउंस रिजल्ट आ गया. अब रिजल्ट खुद तो नहीं आया, जाहिर बात है किसी ने अनाउंस किया, बट आई एम यूजिंग द सेंटेंस रिजल्ट आ गया है. दिस इज अ पैसिव स्टाइल. मैं क्यों यूज कर रहा हूं? व्हाई? बिकॉज व्हेन डूअर इज ऑब्वियस. अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है, आपको सबको पता है कि FPSC ने रिजल्ट निकालना है. अगर मैं कहूंगा कि FPSC ने रिजल्ट निकाल दिया तो इसका मीनिंग बदल जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि कुछ लोग किसी और चीज का इंतजार कर रहे हैं. बट इफ everybody is waiting for the result from FPSC, तो मुझे सिर्फ ये कहना चाहिए आपका रिजल्ट आ गया. मुझे नहीं कहना चाहिए कि FPSC ने आपका रिजल्ट निकाल दिया, बिकॉज इसके इम्प्लाइड मीनिंग कुछ और बन जाएंगे. सो दीज आर द 4 रीजंस कि मुझे पैसिव स्टाइल ऑफ गुफ्तगू अडॉप्ट करना पड़ेगा. एंड देयर इज अ 5th रीजन जो कि अनफॉर्चुनेटली मजाक खेज़ बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं. 5th रीजन क्या है? जैसे कि मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय मी में है, डूअर का पता है. आप में से कोई सवाल करेगा सर डूअर का तो इसमें पता है, इसको फिर क्यों यूज किया हमने, ये स्टाइल क्यों अडॉप्ट किया?
इसका जवाब अमूमन टीचर्स आपको देते हैं, यहां पर टीचर्स बैठे भी इंग्लिश के, कि जी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस करना होता है। नोबडी आस्क्स कि सर या मैडम ऑब्जेक्ट पे क्या स्ट्रेस करना है, क्यों स्ट्रेस करना है, नॉर द टीचर एक्सप्लेन्स कि क्यों स्ट्रेस करना है। सुनो, मिल्क इज नॉट ड्रंक, बता रहा हूं और से सुना। When I say I don't drink milk, I am telling you my routine, active style है ये, right? When I'm saying milk is not drunk by me, it's I am stressing, expressing my dislikeness towards the object milk. ठीक है जी, दैट्स कॉल्ड पैसिव वॉइस। इसको पैसिव स्टाइल में मैं लिख रहा हूं। आई एम नॉट स्ट्रेसिंग द मिल्क, एक्चुअली रिलेटेड टू मिल्क इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्ट्रेस्ड। मिल्क नो 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 नो, ये मुझसे नहीं पिया जाता, दूध मुझसे नहीं पिया जाता। दिस इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस। बेटे पहला सा सवाल है, जस्ट इमेजिन कि ये तो सबने बना लिया था, मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय मी। Just imagine जब आपको ये पूरी तरह इसकी अदराक नहीं है, if you do not have the complete understanding of all these reasons behind making or adopting the style of passive, क्या आप उस बात को समझ सकते हैं, या क्या इस अपनी कही बात को जो कहना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपके दिमाग में चल रही है? Yes or no? जी क्विकली जरा मुझे बताइएगा, क्विक रिस्पॉन्स है ताकि मैं जल्दी जल्दी आगे चलूं। सो रिटन कम्युनिकेशन में मिल्क से रिलेटेड, यमुना, मिल्क से रिलेटेड जो डिसलाइकनेस है उसके ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है। सो लिसन, सो रिटन कम्युनिकेशन में the first and foremost thing that makes your impression, if you understand what is the role of voice and active and passive voice role, आपको पता हो कि कब you have to adopt the active style of गुफ्तगू and when you have to adopt the style or the voice of passive। पहली चीज ये होगा। यहां तक बातें समझ आ रही हैं आपको? ये हैं वो चीजें जिनके बारे में एग्जामिनर कह रहा था कि नहीं पता। ओके, शुड आई प्रोसीड? थैंक यू वेरी मच। I repeat, ये बातें सारी बात होंगी बेटे। अभी आपको ना, अभी मैं सारे सवालों का जवाब नहीं था, अभी आप लेक्चर समझ रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझे, हमने पेपर को समझना है। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू द डिटेल, ये लेक्चर्स के दौरान बातें होंगी। इस वक्त आपको पहले पता होना चाहिए कि जो आप समझते हो CSS मुश्किल है, प्रेसी मुश्किल है, उसकी असल रीजंस क्या हैं, बस, ताकि आपको ये मौका मिल सके कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें। दैट्स इट। इस वक्त पढ़ा नहीं रहा हूँ वो चीज़, वो पढ़ाने वक्त लेक्चर्स में होंगी। पहले आप समझ लो कि आपकी परसेप्शन तो ठीक हो, आपकी अप्रोच तो ठीक हो इस सब्जेक्ट की तरफ। ये ना हो कि आप भी ब्लेंडली आ जाए और अपना वक्त और अपना पैसा जाए करें। आपको समझ हो कि हमने शुरू जब करना है तो किस तरीके से शुरू करेंगे, कि अभी भी 4 महीने में आप टॉप कर सकते हैं। यस, इफ़ यू वांट। कैसे? राइट अप्रोच के साथ करेंगे ना। सक्सेस तो राइट अप्रोच के साथ मिलेगी, वो तो 3 मंथ्स में भी मिल जाएगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट अप्रोच ठीक नहीं होगी तो 10 साल भी लगे रहे तो नहीं होगा। लोग 2-2 साल CSS करते नहीं कर सकते। ठीक है जी? सो प्लीज लिसन टू दिस। आप इसको छोड़ दें, कौन सा रूल कैसा होगा कैसा नहीं होगा, यू जस्ट अंडरस्टैंड। पहले आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, बातें जब लेक्चर होंगे उस पर बहुत डिटेल में आएंगी। अभी हम इस पर नहीं जा सकते, अभी मुझे पूरा पेपर का पूरी मार्किंग स्कीम समझानी है। हर क्वेश्चन क्या चीज़ को चेक कर रहा है उसको बताना है। हैदर आई डोंट वांट, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें, आपके मैसेज बार बार आ रहे हैं, प्लीज स्टॉप स्टॉप प्लीज। अच्छा जी, the second thing is, I write before you a sentence. This is a book, and these are the 4 words. That's why I'm writing 4 times. This is a book. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझ आएंगी, तभी पता चलेगा कि पूरा पेपर जो है ये है किस चीज का। You see, the first role in written communication किसका है? वॉइस का। पेपर किस चीज का है? ऑब्जेक्टिव क्या है इस पेपर का? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड रिटन कम्युनिकेशन। पहला पॉइंट क्या बताया है? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर क्या है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड रिटन कम्युनिकेशन। व्हाई?
because your 70% of your communication as an officer would be in English and would be written communication. Written communication is a document. Document is an evidence. It has to be carefully crafted, right? तो रिटन कम्युनिकेशन में जो सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन में जो एक्सप्रेशन बनाती है उसमें एक रोल मैंने अभी तक बताया, वॉइस क्या होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी जनरली. अभी मैं एक और अंडरस्टैंडिंग देने जा रहा हूँ. These are the 4 sentences, and I mean actually this is the same sentence written 4 times. Listen very carefully. This is a book. अगर मैं लफ्ज़ this पे स्ट्रेस करूंगा तो इसका मतलब है ये है किताब, इधर देखो उधर ना देखो, ये है किताब. मैं उसकी पोजीशन की तरफ इशारा करके बता रहा हूँ. If I say this is a book, अगर मैं इस पे स्ट्रेस करूंगा तो मैं कहूँगा ये एग्जिस्ट करती है, पास्ट नहीं है. अगर मैं ए पे स्ट्रेस करूंगा दिस इज अ बुक, तो मैं ये कह रहा हूँ ये एक है, आप इसको 2 मत समझो. इफ आई से दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, अगर मैं बुक पे स्ट्रेस करूंगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये किताब है, इसको कुछ और मत समझो. ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान में ऐसे ही स्ट्रेस किया गया. ये अल किताब है, आम किताब नहीं है, अल किताब है. कौन सी किताब है? फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, जिसमें हदायत है. जस्ट इमेजिन के वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस करने से मीनिंग बदल गया. इट इज द सेम सेंटेंस but just by stressing the word the meaning is already changed. You see, the meaning is altogether changed. Have you noticed this? You see, when I stressed each and every word, the meaning was entirely changed. My question to you is, bete, what would happen if you are writing and you want to convey these 4 different meanings? Let me give you an example. अगर आपने मीनिंग राइटिंग में आना है तो क्या करना है, ये देखें. लेट्स सपोज certainly this is a book, this certainly is a book. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. this is certainly a book, this is a book, certainly. जैसे जैसे वर्ड्स की पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे मीनिंग चेंज हो रहा है. हैव यू सीन दैट? The words are changing their position, the meaning is getting changed. This is exactly what happens. आपने parts of speech या words की placement. So placement of words or word order, अगर आप ये सोच समझ के नहीं लिखते, बस लिखते जाते हैं जैसे हमें आदत थी रट्टा लगा के लिखने की, तो आप अगर ये मीनिंग देना चाह रहे हो, you might be giving this meaning which is maybe out of context. If you want to give this meaning, you might be giving this word. Who is responsible, ladies and gentlemen? Tell me, who is responsible? You want to give this meaning, but you are writing this one. Who is responsible? You are responsible. अभी समझ आ रही है मैंने जो पहला जुमला कहा था? इंटेंशनल होना पड़ेगा. ऐसे ही वर्ड्स नहीं लिख देते. हमारे साथ छोटी छोटी बातों वर्ड्स के ऊपर बच्चे बहस करते हैं. सर ये वर्ड मैंने लिखा तो है, इसका मतलब ये था, मैं ये कहना चाह रहा था. मैं कह रहा हूँ आपको कहना पड़ रहा है. इन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन में आपका रीडर आपके सामने नहीं होगा कि आप बार बार जाके समझाएंगे मैं ये कहना चाह रहा था. मिसअंडरस्टैंडिंग को आप दूर करेंगे. आप कर सकते हैं, आपके पास मौका होगा करने का. बीइंग एन ऑफिसर आपको मौका दिया जाएगा कि जाके जस्टिफिकेशन देते फिरें. You must know the art of playing with the words. You must know the art of using the words. You must know the art of using a correct sentence structure in the beginning. That the intended meaning that you want to convey must be conveyed in one go, and there is no need to explain that or justify yourself. That's very important. इसलिए parts of speech और इनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है. कैसी होगी ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा. आप सिर्फ ये समझ लो कि फ़िलहाल क्या हो रहा है, आपको क्लैरिटी हो जाए कि पूरा प्रेसी का पेपर क्या है, ये कैसे करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो फेल होते हैं वो क्यों होते हैं. इसके पीछे जो आपके दिमाग में इल्यूजन्स बैठे हुए हैं उनको आप निकाल दें, पैराडाइम चेंज हो जाए. हैव यू गॉट दिस पॉइंट? शुड आई प्रोसीड? मैं आगे चल रहा हूँ. द थर्ड पॉइंट, 2 बातें हो गई. तीसरी चीज़, आई एम गोइंग टू अटर ए सेंटेंस इन उर्दू. मैं उर्दू में एक सेंटेंस बोलूँगा, गौर से सुनिएगा.
मैं उर्दू में एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू स्पीक अ सेंटेंस इन उर्दू, आई विल नॉट रिपीट इट, आई विल स्पीक क्विकली। आपने सोचना नहीं है, सोच विचार करनी भी नहीं है। रीजन है, लॉजिकल रीजन मैं बता दूंगा, साइकोलॉजिकल और लॉजिकल रीजन। आपने सुनते ही चैट बॉक्स में उसको ट्रांसलेट कर देना, दैट्स इट। डू नॉट थिंक, जस्ट ट्रांसलेट। आई वुड नॉट रिपीट, सो आई एम गोइंग टू स्पीक। रेडी? आई एम गोइंग टू स्पीक अ सेंटेंस, आर यू रेडी? ओके, सुने सुने, मैं कल तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं। जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा हुआ, मैंने कहा था सोचना नहीं किसी ने, बट दैट्स गुड। आई जस्ट वांट दैट, आई एम गोना टेल यू द रीजन। ओके जी, लिसन। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा आई हैव बिन, कुछ ने लिखा आई हैड बिन और आखिर में जाके सेंस लिखा, कुछ ने लिखा आई वॉज, ठीक है जी, एंड समथिंग लाइक दैट। किसी ने लिखा आई कैप एंड समथिंग लाइक, ठीक है जी। लिसन, ये सब ने सही और गलत तो बात की बात है, ऐसा क्यों हुआ मैं वो बताऊंगा। आई विल टेल यू द रीजन लेडीज एंड जेंटलमैन। बेटे, सही क्या है वो बाद में बताऊंगा, और इसमें सही और गलत क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट ये सारे गलत हैं बाय द वे। जितने लोगों ने ये लिखा था वो गलत है, 95% लोगों ने गलत लिखा। क्यों लिखा? लेट मी टेल यू द रीजन, लेट मी टेल यू द रीजन। जब आपको टेंसेस सिखाए जाते हैं तो आपको, लिसन, जब आपको टेंसेस सिखाए जाते हैं तो आपको सिखाया जाता है वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। आप लफ्ज को देखते हो ता है, राइट? ता है को देखते हो, ता है को देखने के बाद आप डिसाइड करते हो ये टेंस कौन सा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस पे सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यू आर हैबिचुअल ऑफ दिस वन, राइट? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। टेंसेस को ह्यूमन सिचुएशन से रिलेट करना आपको सिखाया ही नहीं गया, आपको सिखाया ही नहीं गया। आपके जब आप गौर नहीं करते, जब मैंने कहा गौर नहीं करना, मैंने जानबूझ के कहा, बिकॉज जब आप गौर नहीं करते, गौर से सुनिए जी। लिसन प्लीज, लिसन एंड स्टॉप एंड लिसन, लिसन लिसन लिसन, स्टॉप प्लीज लिसन। जब आपको कहा गौर नहीं करना या सोचना नहीं है, तो सोचे इस अमल का नुकसान क्या होता है। When you are not conscious and alert or intentional, your subconscious mind comes to work. और सबकॉन्शियस माइंड में रहा हूं इज इन द प्रेजेंट टेंस। रहा हूं, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रहा हूं सुना, ता रहा हूं सुना, आपको लगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि आपका माइंड ट्रेंड हो चुका है। ये लफ्ज़ भी कभी नहीं भूलना, आने वाले लेक्चर्स में आपको बड़ा सुनने को मिलेगा फ्रॉम मी कि योर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। एग्जामिनर ने देख लो साफ कह दिया है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से लोग नहीं कर सके। प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जामिनर के रिमार्क्स हैं, और मैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस यूज कर रहा हूँ, नोट कर लो। इन थ्रू आउट माई लेक्चर्स आई वुड बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड एंड आई वुड बी टेलिंग यू कि हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड इज कंट्रोलिंग यू, अदरवाइज इफ यू बिकम कॉन्शियस यू कैन सक्सीड। तो ता रहा हूं आपके जहन में प्रेजेंट के साथ फीड है। हाँ, अगर सोचने दिया जाता तो शायद आप लिख लेते। जिन लोगों की नजर कल पर चलेगी उन्होंने वॉस लिखा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ग्रामर के बारे में मेटिकुलस नहीं है, वो कैजुअल स्टाइल में केप्ट लिख दिया। जो लोग ग्रामर ऑब्सेस्ड थे,
Oh my God. Those who are grammar obsessed, they use had been and then they use the word since. Then they use the word since. क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि had been जहां भी आएगा वहां पर since आएगा. They use this one. And they all were wrong. They were incorrect. जुमला ये था, मैं कल का मतलब माजी, इंतजार करता रहा हूं. ये colloquial स्टाइल है, बट इट इज कल, इट इज नॉट प्रेजेंट. तो कल में आएगा आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू यस्टरडे, दैट्स इट. यस्टरडे आई बीन वेटिंग फॉर यू, नॉट सिंस यस्टरडे. सिंस का मतलब होगा कल से लेकर अब तक. अब ऐसा क्यों हुआ? Because your mind is, number one, trained to look at the word at the end, like look at the sentence at the end, the last word of the sentence, and then determine which tense it is and then apply the formula. Your mind is not habitual of thinking in English or expressing that in English. Your mind is not habitual of thinking in English and expressing all the ideas in English. You think in Urdu and then try to translate it in English by following the strategy that has been ingrained in your mind when you were a child or a school student. That's why it is happening to you. लेकिन अगर इसको रिलेट कर दिया जाता ग्रामर फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन की तरह आपकी रियल लाइफ के साथ, तो फिर क्या होता? देखें अब कैसे होगा. मिसाल के तौर पर, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, आई रिसीव ए कॉल. मुझे एक कॉल आ जाती है और मैं कहता हूँ अभी मत मुझे कॉल करें, मैं बिजी हूँ. I'm saying I'm busy here. This is my human situation of motion in now. Motion in now, technically it is called continuous situation. ये मेरी human situation, मैं अपनी situation बयान कर रहा हूँ ना. मैं भी busy हूँ. क्या मतलब busy हूँ? मैं बिजी का मतलब कुछ कर रहा हूँ ना, तो मैं लफ्जों के ऊपर लेके जाने के बजाय रिलेट कैसे कर रहा हूँ? सिचुएशन से. मैं बिजी हूँ मीन्स मैं काम कर रहा हूँ. दिस इज बेसिकली कॉल टेक्निकली कंटिन्यूस. गौर से सुनते जाओ बेटा. सर मैंने आपको 1 बजे भी कॉल किया था. हाँ, मैं 2 बजे से बिजी हूँ. मोशन विद ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूस. परफेक्ट कंटिन्यूस. 2 बजे से बिजी हूँ, 2 बजे से मुसलसल एक्टिविटी में हूँ, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूस. लेकिन बोला कैसे? मैं 2 बजे से बिजी हूँ, मीन्स कर रहा हूँ ना. क्लोकियल स्टाइल है, मैंने कह दिया 2 बजे से बिजी. मैं अभी एक क्लास मैंने खत्म की है, दूसरी क्लास में आया हूँ, दैट इज माई कंप्लीशन सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट. मेरे बच्चों, क्या मैंने बोला कि मैं अभी एक क्लास पढ़ा चुका हूँ, दूसरी क्लास में आ चुका हूँ और आपको ये बार बार बता चुका हूँ? Did I speak like this? Tell me, did I speak like this? Did I speak like this? No. मैंने अपने स्टाइल में बोला. मैंने एक क्लास खत्म की है, दूसरी क्लास में आया हूँ. जस्ट इमेजिन आपका माइंड चुका हो को तलाश करता है उर्दू के फिक्रों में. अभी ट्रांसलेशन चेक की थी आज सुबह, पेपर्स चेक कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज के. 40% लोगों की ट्रांसलेशन में 0 मार्क्स. समझते ही नहीं बात. 40% स्टूडेंट्स के 0 मार्क्स. तो इसलिए कि वो बेचारे उसी तरह पढ़ रहे हैं. कंप्लीशन, राइट. द थर्ड थिंग इज, अब मुझे इस वक्त कॉल मत किया करो, मैं बिजी होता हूं. दैट इज माई रूटीन. आई एम टेलिंग माई रूटीन. दैट्स कॉल्ड इंडेफिनिट. इन नाउ मैं बिजी होता हूं, इस वक्त बिजी होता हूं. These are all human situations or activities occurring in a particular time, okay, called present or past or future. That is why they are called tense. Human situations है, मुख्तलिफ सिचुएशन में हो रही है. But instead of teaching, the tenses like this, relating it with the real life situation, they teach you, for example, in a technical way. जैसे कि मैं कहूँगा कि पानी, water, अंग्रेजी में water, साइंस में H2O.
Do you go to your friend or neighbor or to your guest and say, would you like to have H2O? Do you go like this? Do you say like this? Would you like to have H2O? No. You use simple language. Do you like to have water? So हमने जो ग्रामर पढ़ी है वो ग्रामर पढ़ने को कोई मसला नहीं है, बट ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर और ग्रामर फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन का डिफरेंस तो समझ हो ना, इसलिए आप इसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते. यू थिंक इन उर्दू एंड इन योर माइंड यू सर्च फॉर दोज वर्ड्स इन इंग्लिश जो ग्रामर के मुताबिक हो, एंड देन यू मूव ऑन. तो जब आपको टेंसेस का ही नहीं पता कि टेंसेस क्या हैं, राइट, तो और एक्टिव वॉइस क्या स्टाइल है और पैसिव वॉइस क्या स्टाइल है, तो आप अपनी बात को कैसे समझा पाएंगे? यू नो, द पॉइंट दैट यू नीड टू से आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस yesterday is different meaning. I have been waiting for you since yesterday is a different meaning, but I had been waiting for you yesterday has got a different meaning. तो आप तो मीनिंग ही खुद अपने हाथों से डिफरेंट दे रहे हैं. पूछ वो कुछ और रहा है, कह कुछ और रहे हैं. You got my point? आप तो समझ आ रही है बात की बेटे? Have you got my point? तो जी, टेंसेस हो गए, वॉइसेस हो गई, वर्ड ऑर्डर यानी प्लेसमेंट ऑफ वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच का जनरली मैंने आइडिया दे दिया. ये है वो चीज़ वो कह रहा है ग्रामर को नहीं इस्तेमाल करते, ग्रामर का नहीं पता. देखते जाए आखिरी चीज. इफ आई से फॉर एग्जाम्पल he says to me, I don't drink milk, for example, and I say what it is, you will say कि जी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है. क्यों यूज होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट? यू वुड से कि जब किसी को कोट करना होता है तो हम डायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं, जब हमने अपने अल्फाज में ये बात करनी हो तब हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं. ऑल दिस थिंग यू से दैट, यस यू नो दैट, बट डू यू नो व्हाट इट इज, व्हाई इट इज, एक्सेप्ट दिस जो आपको पता है. और यही सबसे बड़ी खराबी है कि आपको पता है कि जब किसी को कोट करना हो तो डायरेक्ट स्पीच यूज करनी है, जब इनडायरेक्ट में बात करनी हो, अपने अल्फाज में कहना हो तो इनडायरेक्ट यूज करते हैं. गलत. A very limited definition. You know, listen to me. गौर से सुनना. उसने कहा था पास्ट का टेंस, मैं आऊंगा. उसने कहा था मैं आऊंगा और बताऊंगा कि मैंने पेपर क्यों नहीं दिए थे, मैंने इम्तिहान क्यों नहीं दिए थे, लेकिन अब मैं इम्तिहान देने जा रहा हूं. इस साल ये पास्ट, ये फ्यूचर, फिर पास्ट, फिर प्रेजेंट. इनको कैसे आपस में मिलाया जाए कि योर सेंटेंस स्ट्रक्चर डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मिस्टेक. ये है नरेशन. डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सीखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हमें कंपाउंड टू कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स टू कंपाउंड कम्प्लेक्स पे जाना पड़े तो हम किस तरह से उसको लिखें एक्यूरेटली कि उस पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो. हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से लेके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक वी नीड टू लर्न द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. वी हैव टू लर्न. ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें किसी को कोट करना है तो डायरेक्ट स्पीच होगी और अपनी अल्फाज में लिखना है तो इनडायरेक्ट स्पीच होगी. डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज अ मेथोडोलॉजी दैट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर सेंटेंस स्ट्रक्चर. बिकॉज टेंसेस में तो आप डिफरेंट ह्यूमन सिचुएशंस के बारे में जान रहे हैं, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप डिफरेंट ह्यूमन सिचुएशंस को डिफरेंट टाइम जोन्स में जो हो रही हैं, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, डिफरेंट ह्यूमन सिचुएशंस को जो डिफरेंट टाइम जोन्स में हो रही हैं उनको कैसे आपस में क्लब किया जाए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट हो. दैट इज व्हाई वी लर्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट. So when you learn the direct indirect, this is the method that improves or helps you improve your sentence structure, at least the basic or long sentence structure, so that you do not commit any kind of grammatical or structural mistake.
When people don't understand this, तो इसके ऊपर वो प्रैक्टिस ही नहीं करते. Everybody is focused on precie पता चल जाए, precie कैसे लिखनी है, precie कैसे लिखनी है. Still they remain unable to write a precie because उनकी basic fundamental चीज़ों को पता ही नहीं है, ना ही उनकी रीडिंग सही हो सकती है और ना ही वो उसको रिप्रोड्यूस कर सकते, precie लिख सकते हैं. Because precie का मतलब ही वो लेते हैं कि just they have to write a summary of something. They think कि precie का मतलब है शॉर्ट करना. इससे ज्यादा नहीं लोग सोचते शॉर्ट करना. Read a paragraph and write in few words or in your own word a short paragraph. This is what they call precie. Unfortunate. This is very unfortunate. Concept clear नहीं है. You got my point? The next thing and the last thing. अब मैं last चीज के ऊपर आने जा रहा हूँ. अब मैं last चीज के ऊपर आ रहा हूँ. Are you attentive? Please respond एक दफा मुझे कर दें ताकि मुझे पता चले आप बहुत गौर से सुन रहे हैं. अब मैं नाम नहीं लूँगा, किसी बच्चे का सवाल आ गया था व्हाट इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ द प्रेसी, तो मैं उस बच्चे को क्या बताऊँ कि क्या प्रेसी का क्रक्स होगा. अब उसके सवाल देखे जैसे अभी बैठ के उसके सारी मसले हल कर लेने. अब यही तो चीज़ों से मना करते हैं. बेटे आपका कोई मसला नहीं होगा, आपकी आदत ही आपको प्रॉब्लम बनेगी. मैं आपको बता रहा हूँ. आई हैव सीन यू राइटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, जैसे आपको सारे सोल्यूशन अभी मिल जाएंगे. और यही सबसे बड़ा मसला है, जल्दी, इम्पेशंस. हर सवाल का जवाब अभी मिल जाए, गौर व फिक्र खुद नहीं करना, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करना. शॉर्टकट बता दें, टूल बता दें, टिप्स बता दें, टेक्निक बता दें, CSS हो जाएगा. पर 98% लोग CSS नहीं कर पाते. यू मस्ट हैव एन एटीट्यूड. 2 A's. रिमेंबर 2 things. यू नीड 2 A's. अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो CSS में, आपको किसी चीज़ की जरूरत है सिवाय इसके, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड. और अगर आपके पास एटीट्यूड वो आ गया, एप्टीट्यूड आ गया, तो फिर आपको 2 चीज़ों की जरूरत है, स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर. स्ट्रेटेजी आपकी अपनी बनी हुई और स्ट्रक्चर का मतलब उसके मुताबिक एक सिस्टम डिवाइस करना. इफ यू डू नॉट हैव दीज 4 थिंग्स, आई एम अफ्रेड यू विल बी स्ट्रगलिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन. बट इफ यू फोकस ऑन दीज थिंग्स, आप इस वक्त 0 पर भी खड़े हो तब भी आप कामयाब हो जाओगे. अगर आप 0 पर भी खड़े हो तब भी कामयाब हो जाओगे. बट इफ यू डोंट हैव दीज थिंग्स, एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, एटीट्यूड ऑफ क्यूरियोसिटी, एटीट्यूड ऑफ learning, digesting, absorbing, attitude of winning, attitude of doing, learning and doing, not just doing senselessly, attitude of being sensible, attitude of wisdom, using wisdom, intellect, like this. अगर ये नहीं है, जो मर्जी कर ले. मैं अपने 20 साल के तजुर्बे की बेस के ऊपर बता रहा हूँ आपको, बस सिंपल सी बात है. The last thing is, listen to me very carefully. If I ask you what is punctuation, what comes to your mind first? If I ask you what is punctuation, what comes to your mind first? This is my question. What comes to your mind first? What comes to your mind first? Punctuation marks. It comes semicolon, colon, and all these things. These are called. But these are called punctuation. Punctuation marks are not punctuation. Punctuation marks basically are used to punctuate a sentence. Punctuation marks are used to punctuate a sentence or a piece of content, written content. Punctuation marks are used to punctuate. So do you need to understand punctuate करना क्या होता है? What is punctuate? Punctuate means to interpret, to give meaning. To give meaning. Which meaning? The intended meaning. Intended meaning. The meaning that you have in your mind. ठीक है जी? In your mind. Let me give you an example.
यू कम हेयर, और से सुनना, ये भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है. This is the same sentence, but all have different meanings. This is routine. तुम यहाँ आते हो, तुम इधर आओ, तुम यहाँ आते हो, तुम यहाँ आते हो, and this is Hirani. This is also Hirani, generally, and this is about a particular person. Every punctuation mark, when placed, is giving a different meaning. Different meaning. This is not difficult to learn कि punctuation marks का क्या मतलब होता है, सेमीकोलन का क्या मतलब होता है, एक्सक्लेमेशन, ये तो सब पढ़ लेते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या मतलब है, कहाँ लगाना चाहिए, कॉमा का क्या मतलब है, कहाँ लगाना चाहिए, बट दे डू नॉट प्लेस इट राइट. दे स्टिल कमिट मिस्टेक्स. व्हाई? ये जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि कॉमा लगता है और कहाँ लगता है. ये ज्यादा जरूरी है कि आप उस पैसेज को समझें जो उसको पंक्चुएट करना है, और उसमें आपको ये पता हो कि मैं किसको कहाँ लगाऊंगा तो क्या मीनिंग बन जाएगा, किसको क्या लगाऊंगा क्या बन जाएगा. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये नहीं कि जस्ट अपनी मर्जी से कॉमा लगा दे. कॉमा तो यहाँ भी लगा हुआ है, बट इट इज हैविंग a combination with full stop. It is a comma having a combination with exclamation mark. This is having a combination with a question mark. But every three sentence of these, all these three sentences are giving different meaning. So knowing punctuation mark is not enough. Understanding the passage and the tone of the passage, and by sensing the tone of the passage, placing the relevant punctuation mark at the relevant time and at a relevant place is the skill which demands extensive practice. ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें जो मैंने बताई, ये सारी मिलकर दो काम करेंगे. They help you form a written expression which is reflected in precie, comprehension, and translation. ठीक है, इन जनरल बस स्पेसिफाई करेंगे. ठीक है जी. और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो ये जनरली तो उनका बता दिया, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट यू आर प्रोफिशिएंट, हर क्वेश्चन डिजाइन किया गया है. जब ये चीज़ें पता ही नहीं आपको तो ये प्रेसी में कैसे काम करेंगे. अब आ जाते हैं सारी चीज़ों के ऊपर. दिस इज व्हाट ही सेड कि they were ignorant about the basic use of nouns adjective. Usage नहीं पता, definition सबको पता है. Everybody knows the definition, everybody knows the formulas, but they do not know the exact usage of verbs, nouns and adjective. They are not familiar with that. For example, if I say you, what is the difference between noun and verb? Then you will say noun is the name of a person, place or thing is called noun. Verb is an action. And I say, okay, let me know. लोगों को यही नहीं पता होगा, और जिनको पता होगा वो बता तो देंगे, लेकिन मैं पूछूंगा क्यों, ये तो नाम नहीं है, क्यों कह रहे हो इसको कि ये नाउन है. तो आप में से हो सकता है कुछ लोग ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर के में जवाब दें. सर देखिए ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटीरियल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है, कंक्रीट नाउन होता है, एंड ऑल दीज ग्रामर्स आर देयर, बट दे डू नॉट नो द कंसेप्चुअल डिफरेंस. दैट्स व्हाई वो सब्जेक्ट नाउन और वर्ब में मिस्टेक करते रहते हैं. नाउन और वर्ब में मिस्टेक रिटन पेपर के अंदर करते रहते हैं. वो नाउन की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा होता, वो नाउन का पूछ नहीं रहा होता, ये बताओ ये नाउन है ये वर्ब है. वो पेयर ऑफ वर्ड्स में भी पता चल जाता है, और प्लस प्रेसी या कॉम्प्रिहेंशन या ट्रांसलेशन में आपको वर्ड यूजेज से पता चल जाता है कि इसको नाउन और वर्ब का डेफिनेशन नहीं पता, इसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता. You see, this is what examiner is saying.
Now before we delve into the paper, अब पेपर क्या है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या, फाइनली जरा इसको चीज़ों को देख लें जल्दी से। यहाँ तक मुझे बता दें, यस और नो समझ आ रही है आपको? क्लैरिटी ऑफ थॉट आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि रीजंस क्या हैं? ओके, थैंक यू। अब देखते हैं नेक्स्ट। एग्जामिनर सेज कि प्रेसी मैंने दी थी इनको 440 वर्ड्स की, दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी रिटन इन 140 to 150 वर्ड्स। स्टूडेंट्स ने क्या किया, 600 वर्ड्स की प्रेसी लिख दी, 50 वर्ड्स की लिख दी, और ये डेली ऑन डेली बेसिस हम ये देखते हैं, ऑन डेली बेसिस वी सी ऑल दीज थिंग्स। Rida, I have seen your message. It is good if it goes right now. Rida, it is good if it goes right now. At least you would be accepting the reality and then you would be making a strategy that would make you successful. यही चीज़ चाहिए होती है जो लोग नहीं पैदा कर पाते अनफॉर्चुनेटली। रिदा, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, ठीक है? थैंक यू जीशा, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। इस चीज़ का नहीं पता होता तो लोग इल्यूजन का शिकार रहते हैं, बट वंस यू अंडरस्टैंड द रियलिटी, आपको समझ आ गई तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिलेगी, आपको समझ आ जाएगा क्या करना क्या है। एनीवेज, एग्जामिनर ने कहा जी प्रेस इज टू बी रिटन इन 140 to 150 वर्ड्स एंड मोर देन 60 वर्ड्स की, 600 वर्ड्स की किसी ने लिखी, किसी ने 50 वर्ड्स की लिखी। जस्ट इमेजिन, आज भी हम यही देखते हैं कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेसी, हमारा लेक्चर लेने के बाद भी स्टूडेंट्स ना बंद करके अलमारी में रख देते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरा लेक्चर पढ़ा था, याद है मैंने क्या कहा था? अरे नहीं सर, वो तो याद नहीं, वो था, ये था, वो था। I said, go and open your notebook. Did I say anything that you believe? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। What did I say? Look at the examples that I gave you. Look at the practical example that I solved right in front of you. क्या थी? Then they go back to their homes, read those examples and they come with the shameful mind. हाँ सर, गलती हो गई। तो क्या फायदा जी, आपने वक्त ज़ाया कर दिया, गलती हो गई। तो क्या गलती होती है? जब प्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कुछ लोग उसमें अपना नॉलेज झाड़ते हैं, 600 वर्ड्स तक ले जाते हैं। यही हुआ था उसमें भी। और कुछ लोग इतना निटी ग्रिटीज में चलते हैं, वो शॉर्टनेस के ऊपर फोकस करते हैं, जो मैंने शुरू में बताया, शॉर्ट 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 शॉर्ट, कि वो इतना छोटा कर देते हैं कि जो ओरिजिनल साइज है उसके करीब तक नहीं पहुंच सकते। बोथ ऑफ दीज levels of students are misguided, misdirected. They are disillusioned. And they are responsible themselves. No teacher is responsible. They consider themselves to be overconfident and they think that they can do that. They do not understand and apply the formulas. They do not make enough practice. That's why it happens. फिर एग्जामिनर कहता है जी आंसर्स वर रियल मेड प्रोडक्शन ऑफ द पैराग्राफ इन द क्वेश्चन पेपर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में उसने कहा कि उन्होंने पैराग्राफ के अंदर से जवाब निकाल के एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि टीचर की बात को समझा नहीं, स्टूडेंट्स को पता नहीं है, या ट्रेनिंग तो लेते नहीं है बहुत से लोग। रीडिंग को वो वैसे ट्रीट करते हैं जैसे मैट्रिक में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी या इंटरमीडिएट लेवल पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी। दिस इज अ वेरी big mistake on the part of students. This reading is a very high level analytical assessment of the student's intellect, high level analysis of the intellect, analytical analysis assessment of the intellect of the student. It's not like that कि आपने पैराग्राफ पढ़ा और उसमें से आपको जवाब मिल गया and you would be able to write the answer of the passage, the answer of the question. No. Even if you find the answer, even if you find the answer that you believe seems to be the answer is not the answer. ये भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट में उनको यही समझाया कि देखो ये गलत कर रहे हो, आप उधर से उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट देखें, वो कहता है हैंड राइटिंग इन मोस्ट केसेस वाज नॉट लेजिबल। जस्ट इमेजिन, एग्जामिनर बातें कौन कौन सी कर, गौर करो। पिछले देखें, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहा है, क्वेश्चन के बेसिक्स को, ये इश्यूज देखो कौन से हाईलाइट हो रहे हैं। कैन यू सी द इश्यूज? क्या आपने कभी इन इश्यूज के बारे में सुना मार्केट में? हैव यू हर्ड अबाउट दीज इश्यूज? हैव यू हर्ड अबाउट दीज प्रॉब्लम्स दैट द स्टूडेंट्स एनकाउंटर? Everybody listens about precie is the most important question. प्रेसी का क्वेश्चन आएगा, प्रेसी कर लो, इंग्लिश आई होनी चाहिए, डॉन अखबार पढ़ लो, अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी। We run after illusions senselessly. We do not know why to read newspaper.
when to read newspaper and how to read newspaper. We are at a zero level, pick up a newspaper, and throughout the day we waste our time in reading and consulting dictionary. Because somebody has injected in our mind, bete, dictionary padho, dawn ko padho, अंग्रेजी बहुत हाई हो जाएगी. They do not understand or differentiate between academic writing and journalistic writing. They blindly follow the advice. They blindly follow the advice. Just imagine the examiner क्या कह रहा है. Students argue with us when they bring us their assignments and we say that this is not legible, this is not being read. सर क्या हो गया, ये तो मैं ये कहना चाह रहा था. सर ये तो छोटी सी गलती है, इसकी गलती है. सर ये तो छोटी सी गलती है. छोटी गलती नहीं है. Look at this. Book. जरा गौर करें जी अपने दिमाग में. मैंने बोला बुक, मैंने बोला मैंगो. मैंगो पिक्चर बनी है आपके दिमाग में? देखें, आंखें बंद करें. बुक, मैंगो, पिक्चर बनती है ना? हेलो, जल्दी से बताएं. यस और नो? कोई भी लिखूंगा. आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं. पिक्चर्स बन रही है? एक की बन रही है, ज्यादा की बन रही है? एक की बन रही है, ज्यादा की बन रही है? आपको पता कितना फर्क पड़ गया? माइंड ने आपकी पिक्चर ही ज्यादा बनाई है. तो सोचो मीनिंग पे क्या फर्क पड़ता होगा. सर इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है. बहुत फर्क पड़ता है. What's the difference here? What's the difference here? O, A, E. You see? आप लिखते हो ओ, adopt, पढ़ा जाता है adapt. Who is responsible? Who is responsible? आप लिखते हो adopt, लिखा जाता है E. Who is responsible? I'm asking. You want to write this, but is read like this. Who is responsible? I'm asking, please. Are you listening to me? You're responsible. लिखाई का फर्क पता चला? लिखा आप ये रहे हो, पढ़ा ये जा रहा है. किसका कसूर है? आपका कसूर है. You see? एग्जामिनर को कहना पड़ेगा. Nobody focuses on writing. Nobody focuses on time management. Nobody focuses on stamina. Nobody focuses on the accuracy of the language, the neatness and cleanness throughout the paper. Nobody bothers about this. बस सबक याद कर लो, रट्टा मार लो, टेक्निक्स पता चल जाए, लिख लेंगे. ऐसे नहीं होता. Now here examiner gives the clear cut command instructions. Look at this. ये clear direction है. वहाँ पर indirect instructions थी, यहाँ पर clear instruction दे रहा है. कहता है the candidate says should understand the demand of the question. The candidate should understand the demand of the question and must provide relevant to the point and comprehensive answers. देखा इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि पहले सवाल को समझो और फिर टू द पॉइंट जवाब दो. जितना पूछा उतना जवाब दो. जितना पूछा उतना जवाब दो. उसके अलावा कुछ नहीं दो. ट्रायल एंड एरर मेथड इन आंसरिंग क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड. एडवाइस कर रहा है कि ये बहुत कुछ हो रहा था. ट्रायल एंड एरर, लिखना काटना, लिखना काटना. आखिरी जुमला सुनने वाला है, थर्ड पॉइंट सुनने वाला है. There were very few candidates who appeared somewhat serious, relevant, to the point, and really honest to their cause. Bete, your writing is telling the examiner that how much you are honest and serious to your cause and how much you have prepared well and how much you are serious. राइटिंग बता देती है स्टूडेंट कितना सिंसियर है, कितना ऑनेस्ट है, कितना कमिटेड है. तो 98% तो कमिटेड ही नहीं होते हैं. 98% तो ऑनेस्ट ही नहीं थे. 98% तो सीरियस ही नहीं थे. 98% लोगों की तो राइटिंग ही ठीक नहीं थी. 98% लोगों ने तो क्वेश्चन ही नहीं समझा था. 98% लोगों की तो ग्रामर ही ठीक नहीं थी. CSS को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? इंग्लिश को क्यों इल्जाम दे रहे हैं कि इंग्लिश मुश्किल थी? देयर वर टू कैटेगरीज. एक वो थे जो ग्रामर ऑब्सेस्ड हो गए हुए थे,
ग्रामर का कम्युनिकेशन के साथ रिलेशनशिप समझे बगैर ग्रामर याद कर ली थी, आती तो बहुत थी लेकिन पेपर में नहीं लिख सके. They were not able to think in English and spontaneously express their ideas in English. और एक वो थे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने की वजह से बहुत जोम में थे कि हमें तो इंग्लिश आती है, दैट इज नॉट एन इशू, वी डोंट नीड टू डू मच प्रैक्टिस, विल डू लिटिल बिट प्रैक्टिस एंड इट विल बी ओके फॉर अस. An examiner says that reading comprehension, writing a precie, grammar needs attention and improvement. My question to you is, before I proceed for the marking scheme, ladies and gentlemen, क्या अब तक की डिस्कशन में और एग्जामिनर की रिपोर्ट में आपको कोई ऐसी बात सुनाई दी जो आप सोसाइटी में सुनते आए हैं? क्या ऐसी बात सुनाई दी जो आपकी परसेप्शन को डैमेज कर रही है, बाकी परसेप्शन को चेंज कर दिया? यस. Do you really see that your perception is altogether changed? अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि अब आपको जब रियलिटी पता चल गई है तो क्या डेफिनेटली देयर इज नो चांस कि आप मेहनत करेंगे, अपने आप को सिस्टमैटिकली चलाएंगे और आप आगे बढ़ सकेंगे, कामयाब हो सकेंगे? यस, यू कैन. So let's move on. Let's move on. जी. वोकैबुलरी की बात ही नहीं हुई. सही कहा आकाश, आई रेड योर मैसेज. वोकैबुलरी याद कर लो, मुश्किल वर्ड्स होने चाहिए, दिस एंड दैट होने चाहिए. छोटी समझ के इग्नोर करते हैं. सजल, यू आर राइट. हैव यू सीन दैट? एग्जामिनर की डिमांड ही कुछ और है. सिनोनिम याद कर लो, वोकैबुलरी याद कर लो. आई मीन वोकैबुलरी का अब जरा देखो रियलिटी क्या है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे. जरा मार्किंग स्कीम को समझते हैं. द पेपर अगर आपने समझना है ना जी, शुड आई स्टार्ट नाउ? Should I start now? Thank you. जी मरियम, let me tell you. देखें, you have to understand कि ये जो पूरा जो पेपर है इसके डायनामिक्स क्या है, इसकी डिवीजन क्या बनती है. बेसिकली you need to understand every question has been designed for a particular objective to be achieved. What is the overall objective? I told you. What is the overall objective of this paper? I told you. What was the overall objective I told you about this paper? No, English communication नहीं. गलत लिख रहे हैं, अभी भी आप गलत लिख रहे हैं. Language proficiency in written communication. No. Language proficiency. Yes, Sajal, you are right. Language proficiency in written communication. Language proficiency in written communication. You see, language proficiency in written communication. Why? Being an officer, 70% of your communication would be, number one, in English, number two, in written form, right? अब उस ऑब्जेक्टिव को देखना है कि इस ऑब्जेक्टिव को जब आप अचीव करेंगे तो देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस having their own separate objective which are combined together to achieve overall the objective of this paper. So this paper has to be divided into 3 parts. तभी आप इसको उस तरीके से अप्रोच कर सकेंगे. The first is जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं. प्रेसी रीड, ये प्रेसी का जो ये है ना जी, अपॉस्ट्रोफी यानी ई पे आएगा. ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कर दें, ये ई पे आएगी. प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, ये 3 जो क्वेश्चन है ना, इन तीनों क्वेश्चन का जो मकसद है, जो इसके जरिए वो असेस करना चाहता है एग्जामिनर, वो 2 चीज़ें असेस करेगा. नोट करते जाना.
थ्रू दीज 3 क्वेश्चंस वो 2 चीजें चेक करने जा रहा है। ठीक है, मैं अदीबा ये फ्रेंच वर्ड है इसलिए इंग्लिश वर्ड नहीं है बेटा। मैं बताने लगूँ जी अली, आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज सुने ना। आपने अभी तक मैंने कोई चीज ऐसी, क्या अभी तक आपको लेक्चर का ऐसी कोई चीज हुई जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन खत्म कर ना सकी हो? सारी चीजें मैंने बताई है ना। तो व्हाई डू यू नो go haste, you just try to be hasty? Be patient, just relax. This is my responsibility. I'll give you the confidence. This is my promise. बस फिर आप बिलीव रखें। 3 जो क्वेश्चन है ना, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, इन तीनों को लैदा कर लें अपने ज़हन में, और इन तीनों के जरिए एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है। नंबर वन वो ये देखना चाह रहा है, नंबर 1 जो चीज देखना चाह रहा है, बेटे इनके जवाब बाद में देंगे ना दीपा, आप पहले मेन चीज सुने, ये बात की बात है। अब मुझे अब इधर ले जाओगे ना मेरी, बदल मैं अब पूछ लिया बोल रहा हूँ, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम नहीं पूछना। वो अंग्रेजी जुबान बेटा फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक से बनी है ना। फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक से बन के अंग्रेजी जुबान बनी है। अंग्रेजी जुबान कोई ऑटोमेटिकली ऊपर से नहीं आई थी ना, फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक से बनी, तो ये वो वर्ड्स है। ओके, नाउ लेट मी स्पीक थ्रू दीज 3 क्वेश्चन। उनका पहला टास्क ये है कि वो देखें कि आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल क्या है। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स हाउ डू यू comprehend the given content, which is linguistically, and intellectually complex. कॉम्प्रीहेंशन का मतलब कॉम्प्रीहेंड करना, समझना कॉम्प्रीहेंड। आपको जब प्रेसी दी जाती है या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का कंटेंट दिया जाता है, तो वो कंटेंट आपके सब्जेक्ट चॉइस का नहीं होता। दैट कुड बी फ्रॉम वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, फ्रॉम लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस। समझ रहे हो? लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फ्रॉम एनी कंटेंट। हर कंटेंट की अपनी एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ होती है, उसकी अपनी एक लिंग्विस्टिक डेप्थ होती है, लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। क्या ये स्टूडेंट जो CSS का इम्तिहान देने आया, हर तरह के डॉक्यूमेंट को, जो जितना मर्जी इंटेलेक्चुअली या लिंग्विस्टिकली कॉम्प्लेक्स हो, उसको डिकोड कर पाएगा, उसके अंदर की बात को समझ पाएगा? दिस इज व्हाट दे वांट टू सी। क्या वो कर पाएगा? क्या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस पूरी बात को, उसके अंदर के कंटेंट को समझ पाए? Despite the fact that linguistically or intellectually it is complex, he is or she is able to decode that. क्या वो कर पाएगा? पहला स्टेप ये है। अब आप में से देखो ना, मैट्रिक के बाद तो उर्दू भी नहीं किसी ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, FA के बाद भी ज़्यादा पढ़ी होगी, और कईयों ने तो कभी भी नहीं पढ़ी होगी। तो ट्रांसलेशन करना है कि नहीं करना आपने? क्यों करना है? यू माइट बी इन ए पोजिशन एज एन ऑफिसर जहां पर आपको बाइलिंगुअल होना जरूरी है, उर्दू को ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना है, फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, फॉर सम सर्टेन थिंग्स, कुड बी एनीथिंग, यू कुड बी इन एनी सिचुएशन। और अगर आपने कॉम्प्रीहेंड किया, तो कैसे पता चलेगा कि आपने सही कॉम्प्रीहेंड किया? यू हैव टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेशन। In your own words, by reproducing the content in a certain way. अब जब आप रिप्रोड्यूस करेंगे और एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, वहां की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके कुछ कन्वेंशन है, राइटिंग कन्वेंशंस हैं ना, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। इसको मैं कहता हूं रिटन स्किल and expression, right? Expressing your own words by reproducing the content in your certain way. अब written expression से पता चल जाएगा कि आपने सही comprehend किया था, नंबर 1, एंड नंबर 2, किस हद तक comprehend किया था। आपने comprehend किया था और किस हद तक किया था,
ये रिटन एक्सप्रेशन से पता चलेगा। अब व्हेन यू रिप्रोड्यूस द रिटन कॉम्प्लेक्स, याद रखना कि रिटन एक्सप्रेशन वुड प्रूव योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि किस हद तक है, द एक्सटेंट ऑफ द लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब लैंग्वेज क्या है? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। गौर से सुनना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। लैंग्वेज क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। बट गौर से सुने, वोकैबुलरी और ग्रामर इज नॉट स्पेसिफिकली इट्स कंसर्न। इन तीन जगहों पर ग्रामर और वोकैबुलरी उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। उससे होने वाले इंपैक्ट, उससे होने वाले एक्सप्रेशन, उसको देखना है उसको। ग्रामर और वोकैबुलरी से ही लैंग्वेज बनेगी, मगर उसका फोकस ग्रामर पे स्पेसिफिकली एज ए सब्जेक्ट या एज ए पॉइंट ऑफ अटेंशन नहीं है। उसका इंटेंशन है ओवरऑल प्रोफिशिएंसी पे। कोर्स ग्रामर इज प्लेइंग ए रोल एंड ही इज फोकस्ड ऑन दिस वन व्हेन यू एक्सप्रेस दैट। लिहाजा आपने ट्राई एंडेवर लिख दिया अपनी तरफ से ये बताने के लिए कि मेरे पास वोकैबुलरी है, जबकि वहां पर ट्राई सूट करता था। अगर आपने वो ना लिखा ट्राई और एंडेवर लिख दिया और वो सूट ना किया, तो भले आप जो मर्जी वोकैबुलरी दिखाएं वो आपको फेल कर देगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन? You want to demonstrate that I am very good so-called with vocabulary, and this word is not conveying the meaning that you want to convey. Instead, this word is conveying easily the meaning that you want to convey. That works, that does not work. So you are responsible. आपको तो ये शो करना है। अब इसको यहाँ पर vocabulary ना चेक करने की इस लेवल पे, उस तरीके से जिस तरह से आप सोचते हो, क्या रीजन है ये देखो, आगे चल के बताता हूँ। आगे चल के बताता हूँ। दूसरा पोर्शन जो है उसमें 3 क्वेश्चन है। नरेशन, प्रपोजिशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन, या वो नरेशन देते हैं या प्रपोजिशन देते हैं। नरेशन अक्सर देते रहते हैं साथ साथ। सेंटेंस करेक्शन 5 मार्क्स लाजमी, पंक्चुएशन 5 मार्क्स, ये 5-5 मार्क्स के दीज आर द क्वेश्चंस। But these are the most significant questions where the students have an opportunity to make score, but they fail. They cannot make score. Number 1. Number 2. These are the questions through which they narrow down the scope और micro level पर जाकर देखते हैं कि आप grammatical कितने proficient है as far as accurate use is concerned. Accurate use is concerned. गौर से सुने, मैंने सेंटेंस पूछा था, कल मैं इंतजार करता रहा हूँ, लोगों ने लिखा है बिन वेटिंग फॉर यू, वो ग्रामेटिकली करेक्ट था। व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट था मगर इनएक्यूरेट था। करेक्ट इसलिए था कि आई के साथ हैव बीन ही आता है, आई हैव बीन के साथ वेटिंग ही आता है, आई के साथ वॉज ही आता है, वॉज के साथ भी वेटिंग ही आता है, आई के साथ केप्ट आ सकता है, केप्ट के साथ वेटिंग आता है, आई के साथ हैड बीन आता है, हैड बीन के साथ वेटिंग आता है। यस, इट वॉज करेक्ट बट इनएक्यूरेट। क्यों? क्योंकि इनएक्यूरेट इसलिए था बिकॉज जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा गया था, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा गया था। द कॉन्टेक्स्ट वॉज ऑफ द पास्ट। कल इंतजार करता रहा हूं, और कल से लेकर अब तक नहीं, कल ही, कल के दिन में ही सारा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू यस्टरडे। सो इन क्वेश्चंस के जरिए वो देखेगा कि जो रिटन एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर उसने सेपरेटली फोकस कर रहा है एज ए पर्टिकुलर सेगमेंट, कि नरेशन या प्रपोजिशन के ऊपर इसकी कमांड कितनी है, यहाँ पे इसको चेक करना है। वहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर देख रहा था, यहाँ पर सेपरेटली इसको देख रहा है। सेंटेंस करेक्शन जो दिए जाएंगे मुख्तलिफ सेंटेंस हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, किस हद तक है ग्रामेटिकल। पंक्चुएशन को प्लेस खुद से सेपरेटली कर सकता है। अगर कोई अनसीन दे दिया जाए पैसेज, उसकी टोन को समझ सकता है, क्या कॉम्प्रीहेंड करने में टोन को कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं, इसकी एबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। Now my question to all of you, how many marks these question make? What is the total sum of these marks? Please let me know.
65 मार्क्स। कितने रह गए बाकी? नहीं, 35 मार्क्स रह गए हैं। आप देखना चाहते हो 35 मार्क्स किसको दे रहा है? लुक एट दिस। ये भूलना नहीं है जो मैंने बताया है। मैंने जो कहा ग्रामेटिकल प्रोफिशिएंसी फॉर इट्स एक्यूरेट यूज का मतलब मैंने समझा दिया है। इन क्लास आई वुड आस्क, आई वुड नॉट टेल, आई वुड आस्क, I would have explained this also. I have explained this one. Look at, ladies and gentlemen, 35 marks have been allocated for 35 marks have been allocated for 35 marks have been allocated for. Can you look at these? Just count the marks and tell me what is lexical proficiency, Anas? Vocabulary. Yes. 35 marks have been allocated to the test of vocabulary. Can I ask the question? Can I ask another question? My question to you is कि जब FPSC एक पेपर के अंदर 35 मार्क्स के क्वेश्चन एलोकेट कर रही है सिर्फ टेस्ट करने के लिए वोकैबुलरी को, क्या आपकी अकल इस बात को तस्लीम करती है? डज इट मेक सेंस कि प्रेसी का फोकस सिर्फ वोकैबुलरी होगा या उस पर वोकैबुलरी चेक करेगा? उसका मतमई नज़र वोकैबुलरी हो सकता है, कॉम्प्रीहेंशन ट्रांसलेशन में वोकैबुलरी मतमई नज़र हो सकता है, ऑब्जेक्टिव सोल ऑब्जेक्टिव. सो जस्ट इमेजिन हाउ बिग इल्यूजन दिस इज. स्टूडेंट वोकैबुलरी की लेक्सिकल प्रोफिशिएंसी क्या होती है? देखो, लिसन, लेट मी टेल यू लेक्सिकल प्रोफिशिएंसी. लेक्सिकल प्रोफिशिएंसी से पहले आपको ये देखना है लेक्सिकल सेंसिबिलिटी. लेक्सिस निकला है वर्ड, वर्ड्स, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी लेक्सिस से निकला है. देयर इज अ वर्ड ट्राई, effort, struggle, attempt, strive, endeavor. Let's suppose when people consult English to do dictionary, वैसे तो भाई इंग्लिश कंसल्टेशन भी नहीं आती, डिक्शनरी कंसल्टेशन भी नहीं आती, लेकिन लेट्स सपोज कि जब वो इंग्लिश में से मीनिंग चेक करते हैं, मैं उसको कहता हूँ मीनिंग चेक करना. डिक्शनरी कंसल्टेशन इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ प्रोसेस. Dictionary consultation is a process, right? Checking the meaning, checking for the meaning in a dictionary is not consultation. It's a process. बाद में बताऊंगा कैसे होता है. But English to Urdu dictionary most of the students see, और उसमें उन्होंने देख लिया इसका मतलब लिखा है कोशिश, कोशिश. और बस चूंकि आइडिया है सिनोनिम यूज करने का, इसको यूज कर दिया. कोशिश सब करते हैं, मैं एंडेवर यूज करूँ ताकि मेरा इंप्रेशन अच्छा जाए, मैंने बड़ी अच्छी वर्ड यूज की है. दे थिंक दैट इज ए क्वालिटी वर्ड. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्टूडेंट्स क्वालिटी वर्ड का तर्जुमा डिफिकल्ट वर्ड्स करते हैं. क्वालिटी वर्ड्स मीन्स डिफिकल्ट वर्ड्स. रॉन्ग, ब्लंडर, मिस्टेक. क्वालिटी वर्ड्स का किसने मतलब बना दिया डिफिकल्ट? भाई, मेच्योर वर्ड्स का मतलब किसने बना दिया डिफिकल्ट? क्वालिटी वर्ड्स का मतलब है अ वर्ड विच इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, द वर्ड दैट यू नो हाउ टू यूज इट, यू नो इट्स प्रॉपर यूज, यू नो इट्स प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, राइट? लईसल इंसान इल्ला मा सा. इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की. मैन गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर. ये नहीं आएगा मैन गेट्स व्हाट ही एफर्ट्स फॉर, What's he endeavors for. गलत, स्ट्राइव आएगा, क्योंकि स्ट्राइव ही की जो मीनिंग है वो उस कनोटेशन में उसको उधर आते हैं, उसको फिट आते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, राइट? तो स्टूडेंट चूंकि सुना उसने होता है वोकैबुलरी लिखनी है और वोकैबुलरी में सिनोनिम यूज करने हैं, तो आसान तो यूज करने नहीं है, मुश्किल वर्ड यूज करने शुरू कर दो, वो इस तरह के वर्ड यूज करना शुरू करते हैं और यही वर्ड्स उनको ले डूबते हैं.
लेक्सिकल सेंसिबिलिटी का मतलब आपको ये सेंस हो कि एफर्ट कहाँ आएगा, स्ट्रगल कहाँ आएगा, अटेम्प्ट कहाँ आएगा, स्ट्राइव कहाँ आएगा. लिसन, मैं बोलने लगूं, गौर से सुनिएगा. I remember when I was struggling to learn about the true Islam, I made every effort to consult all those scholars